गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर योर टाइम। सैटरडे के दिन शाम को हमारे लिए चाय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रियली थैंक यू एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग द सेशन. Just I'll be holding on because lot of participants are joining in. You just will wait for 10-15 seconds. आज का टॉपिक हमारा रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग रहेगा। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम कपिल किशोर है। मैं प्रूडेंट प्रॉपर्टीज़ के चैनल को हेड करता हूँ। मैं पिछले 14 साल से प्रूडेंट कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। मैं पहले म्यूचुअल फंड्स में था, उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग, एंड लास्ट 8 years आई एम हेडिंग रियल एस्टेट। एज ऑफ नो हम लोग बॉम्बे, पूना और बेंगलोर में एक्टिव है। इसके अलावा गुजरात में भी हम लोगों ने 4 साल पहले ही चालू कर दिया था। नाउ वी आर डीलिंग विद कपल ऑफ डेवलपर्स ऑल इंडिया। हमारा वेबसाइट जो है prudentproperties.in नेक्स्ट सैटरडे को ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। ओके, एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन ऑन रियल एस्टेट, आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज रियल एस्टेट। बट उसके लिए मैं एक लंबा चौड़ा पिच देने की जगह पे आई जस्ट वांट टू शो यू अ वीडियो अबाउट व्हाट इज रियल एस्टेट। Thank you for watching that video. Okay, Prudent welcomes Team Mahindra Life Spaces. With us, we have Mr. Abhijit More. He's the National Channel Sales Head for Mahindra Life Spaces, Pan India. We have with us Mr. Sanjay Solanki. He heads Mumbai for channel sales. And we have Mr. Amay Kaporkar. He is a relationship in charge for Mahindra. And with them, we have with us Team the Properties. Mr. Hitesh Agnani. He is the founder, and today he'll be the main key presenter for our entire presentation. And with us, we have Mrs. Madhya Agnani. She's also one of the co-founder of the Team Properties. From here, I'll hand over the session to Mr. Abhijit More. He will like to add a few words on real estate and what is the priority of digital marketing today. To you, Abhijit. Thank you, Kapil ji.
गुड इवनिंग एवरीवन। एंड कपिल जी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि नो मैटर आप कितने भी सेशंस रखते हो अपने पार्टनर्स के लिए, आपके पार्टनर्स हमेशा लॉयली, दे ऑलवेज जॉइन यू एंड दे आर ऑलवेज वेरी वेरी एक्टिव. It's very difficult to get partners to come again and again for various sessions, so that kind of shows कि आपका कितना hold है, how closely knit the prudent community is. So kudos to you first of all for that. Yeah, so guys, some of you must have already worked with Mahindra. कुछ लोगों ने पहले काम किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं काम किया होगा. So just to give you a background, we are a part of the Mahindra group, the M&M that you must have heard, Mahindra and Mahindra. We are a part of the same group, and we are present across the country. So if I talk about West, तो मुंबई, पुणे, नागपुर. अगर मैं साउथ में देखूँ तो बैंगलोर, चेन्नई. नॉर्थ में जाऊँ तो गुड़गांव. And we are into both segments, so affordable as well as premium. अगर तो we are one of the very few builders जिसके पास आज की तारीख में 10-12 लाख का भी प्रोडक्ट है और 4.5 करोड़ का भी प्रोडक्ट है. If I talk about the width of products that I have, so and yet we are still a 1,000 crore company, and the ambition is that this last year we were about 1,000 crores. This year we are planning 2,000 crores, and the coming time you will see the business opportunity from our end coming to you very very in a very exponential manner. So it's a fantastic time to get associated when the company is growing. Kapil ji and Prudent are very very dear to our heart. They are among our key CPs, and whenever we plan any launch, any sustenance, Kapil ji and Prudent are always a part of our planning. And to give you a background of how we came up with this idea, Kapil ji last time had a session on digital marketing overall, and without his knowledge, I happened to be joining that session as a channel partner. And I really loved the way the session went, the way Hitesh ji and Kapil ji conducted the session. And immediately after the session, I jumped in और मैंने कपिल जी को बोला कि ऐसा सेशन मुझे महिंद्रा के साथ करना before any other developer comes in. And so the question was that how do we go about it? So while in the last session we did talk about digital marketing as a whole, हमने सोचा कि अगर मैं कंप्यूटर खोलूँ तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, क्लिक क्या करना है, मेरे सामने जो स्क्रीन आएगी वो दिखती कैसे, मैं कैंपेन चलाऊं कैसे. एवरीबडी टॉक्स डिजिटली. So that's why we chose one of our hottest selling product in the country, which is Happiness Kalyan. और अगर इस प्रोडक्ट की आपको मैं अगर कुछ बैकग्राउंड दो तो हमने अराउंड 1.5 साल पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था. 1200 यूनिट्स लॉन्च किए थे. एंड ड्यूरिंग द लॉन्च, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 weeks, we sold over 1000 units. And we were operating in a market where some of India's top developers were already present as competition. And the whole reason for that was because 70% of our business came through the online and digital channels through our channel partners. So that is the strength of digital marketing. Some of you might be working right now on reference model or must be churning existing data, but let's admit उसका एक लिमिटेशन होता है. एक पॉइंट के बाद आप रेफरेंस या चर्निंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हो, तभी जाके फ्रेश लीड्स की जरूरत पड़ती है. So today we thought, why not take one of our fast moving products. We've shared some collaterals of our project, and why not give a live demo of how to create a campaign. So this is as real as it can get. And if I was in your place, मैं यहाँ पे pen paper notebook लेके ready हूँ just to make some notes. Parallelly, if some of you are on your computers, laptops, I would urge आप भी parallelly एक session चालू करो, but pay good attention because this is as practical as it can get. And many thanks to Kapil ji and Hitesh ji for kindly agreeing to our request and having the session. So I won't take much time. What we'll do next is that we'll just quickly run you through what our project is, so you get an idea of what sort of ticket size are we marketing, and then we will go live with how to go about creating a campaign. So my colleague Amaya will quickly run you through the project details, and then we will go towards the marketing part of it. So thank you once again for joining in. Amaya, over to you. थैंक यू अभिजीत सर. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम अमेय काकोडकर है. जैसे अभी अभिजीत सर ने बताया, मैं अपना जो महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा. तो लोकेशन से चालू करते हैं. हमारा एक शॉर्ट लोकेशन वीडियो है जिसमें लोकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताया जाएगा, और आजू बाजू में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाली है जिसका फ़ायदा जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको क्या फ़ायदा होगा, वो ये शॉर्ट वीडियो से आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा.
था हमारा शॉर्ट वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण प्रोजेक्ट ये अपना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मतलब जो मुंबई नासिक हाईवे है वहाँ पे आता है। और ये कल्याण भिवंडी बाईपास से मतलब अगर आप थाने से आते हो तो कल्याण भिवंडी बाईपास पे अगर आप राइट लेते हो ऑन दी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो आपको इमीडिएटली लेफ्ट हैंड साइड पे अपना ये प्रोजेक्ट दिखेगा। सो गिव मी अ सेकंड। सो बेसिकली ये हाईवे से तकरीबन 1 से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही है वहाँ पे, तो ये जो मुंबई नासिक हाईवे है उसको वो एक्सपांड कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आज की तारीख में जो आपको हमारे प्रोजेक्ट से थाने जाने के लिए जो समय लगता है वो आपको 5 से 10 मिनट आप जल्दी पहुँच सकते हो। मतलब आज की तारीख में अराउंड 20-25 मिनट्स लगते हैं अपने प्रोजेक्ट से थाने जाने के लिए। तो वही जो अंतर है वो आप 15 से 20 मिनट में तय कर सकते हो। और जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे वो ये राजनौली नाका का फ्लाईओवर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो और दुर्गाड़ी ब्रिज का जो फ्लाईओवर है उसका हाल ही में मतलब 31 मई को उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इससे वो लोकेशन पे काफ़ी ट्रैफिक जो पहले हुआ करता था वो अभी काफ़ी ईज़ आउट हुआ है। और उधर वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होता और काफ़ी आसानी से ट्रैफिक फ्लो होता है। साथ ही में आपने ये भी देखा रहेगा कि प्रोजेक्ट के ठीक सामने राजनौली नाका का मेट्रो स्टेशन आ रहा है। तो जो मेट्रो की अपनी लाइन 5 है वो अपने प्रोजेक्ट के ठीक सामने से जाएगी। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट के बाहर निकलते ही सामने उनको मेट्रो स्टेशन मिलेगा। और मेट्रो की कनेक्टिविटी लेके वो मुंबई में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो से उनको कल्याण स्टेशन की भी कनेक्टिविटी मिलेगी जो अपने प्रोजेक्ट से तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और कल्याण स्टेशन से फिर उनको सेंट्रल लाइन की कनेक्टिविटी मिलती है मुंबई के अंदर आने के लिए एज वेल एज मुंबई के बाहर जाने के लिए। साथ ही में एक डोंबिवली मानकोली ब्रिज करके एक वहाँ पे आ रहा है जो अपने प्रोजेक्ट से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इससे आपको अगर डोंबिवली जाना है तो दिस विल बी ए शॉर्टर रूट, ये शॉर्टकट बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहाँ पे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी आ रहा है जो आपको वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन ये तीनों लाइंस को कनेक्ट करेगा। मल्टी मॉडल कॉरिडोर मतलब यहाँ पे ये एक बेसिकली हाईवे एज वेल एज हाईवे के साथ में एक रेलवे लाइन भी वहाँ से पैरेलली पास होगी। सो आपको दोनों कनेक्टिविटी मिलेगी ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर से। प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो अपना टोटल एरिया है 9 एकड़ का। और 9 एकड़ के ज़मीन पे हम लोग 60 टावर्स लेके आने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड में जो रोड जाता है वो हाईवे को कनेक्ट होता है और राइट साइड में जो रोड जाता है वो कल्याण को कनेक्ट होता है। ये जो 5 टावर्स है सॉरी 60 टावर्स है उसमें से 5 टावर्स हमारे 1 BHK के होंगे और सारे टावर्स 14 फ्लोर्स के होंगे। जो 2 BHK के टावर्स है वो अपने 2 टावर्स है जो 22 फ्लोर्स के होंगे G+22। इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एक 9,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेके आने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल, योगा रूम, प्लेइंग रूम, फिर स्काई लाउंज ये सारी चीज़ें हम लोग देने वाले हैं। यहाँ पे सेंटर में आप जो देख रहे हैं मल्टी लेवल कार पार्क की 7 माले की बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो जितने भी अपने कार और बाइक्स हैं वो आप ये कार पार्किंग बिल्डिंग में पार्क कर सकते हैं। और इसके अंदर गाड़ी लेके जाने के लिए रैंप हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इट्स नॉट अ मैकेनिकल कार पार्क बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड रैम्प्स इन दिस। तो और इसके जो मल्टी लेवल कार पार्क है उसके टॉप फ्लोर पे मतलब उसके टेरेस पे हम लोग 3 टर्फ्स देने वाले हैं। 2 मल्टीपर्पज टर्फ्स है बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल के लिए और एक टर्फ क्रिकेट का है। साथ ही में मतलब प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक दे रहे हैं। किड्स प्ले एरिया दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक जगह दे रहे हैं, पेट्स के लिए अगर आपके पास डॉग्स या कैट्स है तो उन लोगों के लिए अलग से हम लोग एरिया घुमाने फिराने के लिए दे रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक कमर्शियल एरिया भी हम लोग देने वाले हैं। तो आपको जनरल स्टोर, सुपरमार्केट, बैंक, ATM, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, सैलून ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर ही देंगे। सो इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब एक बार प्रोजेक्ट के अंदर आए तो बेसिक एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलेगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। प्लस इसके साथ हम लोग पाइपलाइन कनेक्शन मतलब पाइप गैस का कनेक्शन भी हम लोग देने वाले हैं। सो आपको डे 1 से ही ये कनेक्शन मिलेगा घर के अंदर। इतनी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम लोग
7 ऑप्शंस देने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई डेवलपर ने क्लाइंट को ऑप्शन दिया है कि आपको 7 ऑप्शन दिए जिसमें से क्लाइंट खुद चूज कर सकता है कि कौन से इसमें से एमिनिटीज ले। तो ये 7 एमिनिटीज कौन से हैं? पहला, ई लर्निंग क्लासेस। आप बायजूस से वाकिफ रहेंगे। तो बायजूस जैसे हम लोगों ने टॉपर के साथ टाइप किया है, तो टॉपर का एक ई लर्निंग क्लासरूम हम लोग वहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। सेकेंड है आपका म्यूजिक और डांस रूम। तो अगर कोई म्यूजिक और डांस में दिलचस्पी रखता है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल रूम बनाई जाएगी। तीसरा बहुत कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है, वो है आपका मिनी थिएटर। सो एक 15 to 20 सीटर का एक मिनी थिएटर हम लोग सेटअप करने की एक ऑप्शन दिए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम लोग एक गेस्ट हाउस का ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ पे मतलब अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई त्योहार है, मेहमान आपके यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो उनको होटल रूम में जगह देने की जगह पे आप प्रोजेक्ट के अंदर ही उनको एक गेस्ट हाउस की अरेंजमेंट करके दे सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा प्लस आपका समय भी बचेगा। पांचवा एक कॉन्सेप्ट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये है आपका मार्केट प्लेस। तो बहुत सारे लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा पापड़ अचार का बिजनेस या कोई होममेड प्रोडक्ट का बिजनेस करता है। तो ये मार्केट प्लेस ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे एग्जीबिशन लगा सके। तो इसका फायदा ये होगा कि प्रोजेक्ट में टोटल 1241 फ्लैट्स हैं। तो 1241 फैमिलीज का उनको कंज्यूमर बेस मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। और इसके अलावा लास्ट 2 ऑप्शंस है कि एक वॉशिंग एरिया, मतलब कॉमन वॉशिंग रूम्स रहेंगे, जहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाए रहेंगे। तो आप आके वहाँ पे आपके कपड़े धो के आप लेके जा सकते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ स्टोरेज स्पेस। मतलब जैसे बैंक में अगर आप कोई चीज़ लॉकर रूम में रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉकर रूम भी देने वाले हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग ये प्रोजेक्ट के साथ दे रहे हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, आपने एमिनिटी सुन के आपको लगा रहेगा ये प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट रहेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि ये एक्चुअली वैल्यू होम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। और ये वैल्यू होम्स में हम लोग प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे, स्विमिंग पूल के अलावा आपको सारी एमिनिटीज दे रहे हैं। स्विमिंग पूल हम लोग डेलिबरेटली हम लोग ये सेगमेंट में नहीं देते, क्योंकि इसकी जो स्विमिंग पूल के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। सो और एरिया भी अननेसेसरी यूटिलाइज हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग माइनस द स्विमिंग पूल यू आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज जो आपके प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट में होते हैं। आपके दिमाग में नेक्स्ट सवाल आया रहेगा कि इसका मेंटेनेंस कितना होगा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी चीज़ें देने के बावजूद भी हमारा मेंटेनेंस सिर्फ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स हु आर इनटू प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट, जहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे जो यूनिक है महिंद्रा के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, कि ये प्रोजेक्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब IGBC सर्टिफाइड प्रोडक्ट है एट गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका ये सर्टिफिकेशन का बेनिफिट ये है कि आपको काफ़ी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स, वाटर सेविंग्स, इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट ऐसे डिज़ाइन किया है कि सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए सेफ हो। ये सारे बेनिफिट्स ये IGBC के प्रोडक्ट के कारण, ये मतलब सर्टिफिकेशन के कारण आपको ये मिलती है। IGBC सर्टिफिकेशन का आगे चल के ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट आपको मतलब एक फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट का कि प्रॉपर्टी टैक्स में आपको कुछ बेनिफिट पास ऑन करे अगर IGBC सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा तो। नाउ मूविंग ऑन टू दी प्रोजेक्ट, हाउ डज इट लुक। तो आपने फ्लोर प्लान तो देख लिया। ये 7 बिल्डिंग में हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट की है। मतलब मुझे बता के आपको खुशी हो रही है कि ये जो सामने आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये ग्राउंड प्लस 14 का बिल्डिंग रेडी हो चुका है। मतलब ये 2 बिल्डिंग्स है जो रेडी हो चुके हैं, और बाकी के भी बिल्डिंग्स अभी हम लोग तेज़ी से इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल हम लोगों ने 5 महीने के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी होगा तो कुछ इस तरह से आपका प्रोजेक्ट दिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है अपने प्रोजेक्ट का कि ये प्रोजेक्ट थाने से काफ़ी नज़दीक है और सेंट्रली लोकेटेड है। मतलब कल्याण भी नज़दीक है, डोंबिवली भी, सॉरी आपका भांडुप भी नज़दीक, आई एम सो सॉरी, भिवंडी भी नज़दीक है, और थाने भी नज़दीक है। ये सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट बन जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ब्रॉडली 2 कैटेगरीज है, 1 BHK एंड 2 BHK। उसमें 1 BHK के हमारे पास 2 टाइपोलॉजीज है, 2 BHK के हमारे पास 2 टाइपोलॉजीज है। यूनिक फीचर ये है इसके अंदर कि 1 BHK के में भी हम लोगों ने एक
कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है और एक मास्टर टॉयलेट बाथरूम दिया है। और जिस प्रकार से डिज़ाइन किया है, स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है इसके अंदर। ऑलमोस्ट 95% एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ वेरी वेरी लेस वेस्टेज इन ऑल द फ्लैट्स दैट यू सी ओवर हियर। इसमें जोड़ी फ्लैट पॉसिबल है, मतलब किसी को अगर 1+1 की अगर जोड़ी करनी है या 2+2 की जोड़ी करनी है, इट इज़ पॉसिबल। सो वील एक्सप्लेन टू द क्लाइंट्स व्हेनेवर दे कम। तो जोड़ी इज़ पॉसिबल इन दिस। नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग पार्ट। सो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट तो है अपना जो पूरे अफोर्डेबल प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट्स के बेनिफिट देते हुए, बट अपने प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये टावर है, हमारे पास 3 बैंड्स है। 1st to 7th फ्लोर का एक प्राइस है, 8 to 14th फ्लोर का एक प्राइस है एंड 15 to 22nd फ्लोर का एक प्राइस है। सो हमारे जो 1 BHK है, दे स्टार्ट एट 33.65 लाख ऑल इंक्लूसिव। और जो उससे थोड़ा सा बड़ा जो एरिया 1 BHK भी, ये चालू होता है 42.38 लाख ऑल इंक्लूसिव। और फिर 2 BHK के अपने पास 2 टाइपोलॉजीज है। 2 BHK की प्राइस चालू होती है 48.69 लाख ऑल इंक्लूसिव, और जो हाईएस्ट अमाउंट है वो जाता है 58.5 लाख ऑल इंक्लूसिव। जब भी मैं ऑल इंक्लूसिव बोलता हूँ तो दिस इंक्लूड्स स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST और 2 साल का मेंटेनेंस। नॉर्मली डेवलपर 1 साल का मेंटेनेंस कवर करते हैं, बट हम लोग इसके अंदर 2 साल का मेंटेनेंस कवर कर रहे हैं। और अगर किसी को कार पार्क लेनी है तो उनको एडिशनली 3.75 लाख रुपीस उनको पे करने पड़ेंगे। तो मान के चलिए अगर कॉस्टलीस्ट यूनिट भी अगर आप लेते हैं ये प्रोजेक्ट में, तो अप्रोक्सीमेटली 62.5 लाख तक जाएगा मैक्सिमम। सो इट इज़ क्वाइट चीप। ये प्राइस अगर आप थाने के 2 BHK के साथ कंपेयर करोगे, तो ये थाने का 2 BHK तकरीबन आपको 1 करोड़ के आसपास का प्राइस जाएगा। वही चीज़ अगर आप थोड़ा सा एक 15-20 मिनट थाने से आगे ट्रैवल करके टुवर्ड्स कल्याण आते हो, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बेरली एक 8 से 9 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उतना 15-20 मिनट का सफ़र तय करके आप आगे आते हो तो आपका ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए बचता है। प्लस आपको, क्योंकि वो एरिया डेवलप हो रहा है, तो प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि सारे डेवलपमेंट्स आपके आंखों के सामने हो रहे हैं। सो ये बेनिफिट है। इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी जो प्राइस है ना, जितने आपको सामने दिख रहे हैं, इसके अंदर कार पार्क इंक्लूडेड नहीं है। केवल जो 1 BHK बी का जो प्राइस है उसके अंदर कार पार्क इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 BHK बी जो फ्लैट हमारे पास जो बचे हैं वो कार पार्क के साथ ही हमको बेचने हैं। सो 1 BHK बी का जो प्राइस है, इसके अंदर सिर्फ कार पार्क का अमाउंट इंक्लूडेड है। बाकी के जो फ्लैट प्राइसेस है उसके अंदर कार पार्क का प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर अगर आप पेमेंट प्लान देखोगे तो इट इज़ अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है अपना। बुकिंग अमाउंट अपनी 10% से होगी। सो कोई भी क्लाइंट को अगर बुक करना है तो 10% दे के बुकिंग कर सकता है। और बुकिंग के 45 दिन के अंदर क्लाइंट को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की अमाउंट पे करनी है, और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का कराना है। बाकी के अमाउंट जो क्लाइंट, हर एक क्लाइंट का जैसी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उनको हम लोग वो होम लोन ले सकता है। ये हमारे बैंकिंग पार्टनर्स है। प्रूडेंट इटसेल्फ इज कैन, आई एम श्योर, मतलब यू आप खुद क्लाइंट को असिस्ट कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो बैंक कौन से बैंकिंग पार्टनर्स लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि ये प्रोजेक्ट में क्लाइंट प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिन लोगों को पता नहीं है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कुछ 3 क्राइटेरिया है। अगर क्लाइंट वो क्राइटेरिया में बैठता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑन एन एवरेज 2.5 लाख का बेनिफिट ये प्राइस पे क्लाइंट को मिलेगा। तो इसका ये हाउ डज दिस वर्क इज दैट क्लाइंट को पहले बुकिंग करना है, और बुकिंग प्राइस यही रहेगी जो सामने उसको दिखती है। और अगर क्लाइंट वो 3 क्राइटेरिया में फिट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर ही अप्लाइज फॉर द लोन 6 महीने के बाद उसको अराउंड 2.5 लाख उसके लोन के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। फिर वो क्लाइंट का चॉइस है, उसको EMI कम करा के लेना है या उसको टेन्योर कम करा के लेना है। नॉर्मली ये 3 क्राइटेरियाज वो होते हैं कि पहला क्राइटेरिया है कि क्लाइंट का मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों का कोई भी मतलब पूरे इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एंड दिस शुड बी देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, उनकी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो वो खरीद रहे हैं। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ का एनुअल इनकम दोनों का मिला के इट शुड बी लेस देन 18 लाख रुपीज। ओके, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज दैट कि अगर कोई इंडिविजुअल, इफ अ मैन इज अप्लाइंग फॉर दिस लोन,
तो उसको एक फीमेल को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ती है अगर उसका फैमिली मतलब उसका खुद का इनकम 6 लाख के नीचे हो तो। सो इसी साथ मैं ये प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूँगा। आपको कोई भी क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। थैंक यू अमेया, थैंक यू फॉर द लवली प्रेजेंटेशन। अच्छा, थैंक यू कपिल अभी सर। अमेया ने जो प्रोजेक्ट बताया, यूएसपीज बताए, हाउ टू यूज देम एंड हाउ टू जनरेट द लीड्स, आज हमारा मेजर एजेंडा है। फॉर दैट आई वेलकम मिस्टर हितेश अगनानी फ्रॉम द टीम प्रॉपर्टीज। Hitesh, over to you now. Hi, sir. Good evening, everyone. Thank you all for joining in today. So today we are going to talk about. First of all, I just want to know if I'm audible. If you could put it in the chat box. Am I audible? Yeah, Loud and clear. Okay, great. So let's start today's topic. We are going to talk about digital marketing, online presence, and how to generate leads via digital marketing. So ये काफी interesting topic है, as we discussed, and Abhijit sir said that we have already done a webinar on this, and I'm sure a few people must have already attended. So उनके लिए value add ये है कि this time we are going to show a small live demo of how to set up a campaign. तो हम actually आपको एक campaign Facebook page से promote करके दिखाएंगे जहाँ पे महिंद्रा कल्याण का जो project है, happiness project, we will be picking that up and उसका एक campaign set up करेंगे and we'll show you exactly करते कैसे हैं. ठीक है, तो let's start. I will start by sharing my presentation. So first of all, I would like to introduce myself and my company. I am Hitesh Agnani. I'm one of the co-founders of theproperties.com. We are a real estate marketing platform wherein we help developers and channel partners raise project-specific leads via digital marketing platforms. So we've been in the industry since 2014. It's been 7 years. And in the past 2-3 years itself, we must have spent more than 5 crore rupees on digital platforms. So, we hold good experience when it comes to setting up these campaigns and lead generation from these platforms. So first thing first, सबसे पहले ये discuss करेंगे what is digital marketing. I'm sure most of you must be knowing digital marketing क्या है. Some of you must have already done digital marketing for your products and services. So I'll just give you a small brief, एकदम simple words में समझाऊंगा. Digital marketing जब आप कोई अपना product और service इंटरनेट के द्वारा मार्केट करते हो and कोई इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस पे आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस को दिखाते हो तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, तो इसमें what basically you do is you are using these platforms which are connected via the internet to market your products and services. So simple words, that is what is digital marketing. Now this includes email marketing, social media marketing, web-based advertisement. Any form of advertisement on digital platforms is digital marketing. Okay, simple words. Now what are the benefits of digital marketing? You have a very broad geographic reach. अब ज्योग्राफी रीच का आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है, आप आज मुंबई में बैठ के बैंगलोर में एडवर्टाइज कर सकते हो, बैंगलोर में बैठ के दिल्ली में एडवर्टाइज कर सकते हो, एंड इवन यहाँ पे बैठ के सिंगापुर में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकते हो. सो दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग इज. You don't have to go anywhere. Sitting in any part of the world, as long as you are connected to the internet, you can reach out to anyone anywhere in this world. So that is how strong digital marketing is. It is very cost effective. Now cost effective, why is it cost effective? I'll tell you. आज अगर आप न्यूज़पेपर में एक क्वार्टर पेज ऐड ले लेते हो तो द कॉस्ट रन्स इन लैक्स. ओके, एंड उसका शेल्फ लाइफ कुछ मिनट्स ही होता है. सुबह को कोई पढ़ता है, शाम को कोई पढ़ता है, रात को, एंड दैट्स अबाउट इट. बट डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? विद दैट बजट you can run ads for over a month. All you need is maybe 100 rupees a day. With 100 rupees a day, you can advertise your products and services daily, okay, on these platforms. So that is how cost effective it is. You don't need to spend lakhs. You don't need to have a lakh rupee budget to advertise your products and services. So एकदम cost effective है. क्विक एंड इजी रिजल्ट्स क्या है? देखो, सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते थे तो आपको पता कैसे चलता था कितने लोगों ने पढ़ा? आपको नहीं पता चलता था. वो क्या बोलते थे, हमारा सर्कुलेशन है, 1 करोड़ का सर्कुलेशन है, 5 करोड़ का सर्कुलेशन है, 50 लाख का सर्कुलेशन है. तो यू आर अज्यूमिंग कि एटलीस्ट चलो 10% लोगों ने मेरा पढ़ा होगा एड न्यूज़पेपर. दैट वाज ओल्ड स्कूल. नाउ अब क्या होता है ना, आपको रियल टाइम इनसाइट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से कि लास्ट 7 आवर्स में, लास्ट 12 आवर्स में आपके कितने इंप्रेशंस हुए हैं, आपके कितने लोगों ने क्लिक किए हैं, आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं, और आपको कितनी लीड जनरेट हुई है. सो इट इज इजी फॉर यू टू चेक कि आपने कितने पैसे लगाए हैं और उसके अगेंस्ट आपको क्या रिजल्ट आया.
अगर आपको कोई भी अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू. सेकंड, और एक लास्ट पॉइंट क्या है, इट विल हेल्प यू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. तो इसमें क्या है ना, यू कैन रीच आउट टू योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स वाया दीज प्लेटफॉर्म्स. एज लॉन्ग एज यू नो आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीदने वाला कौन है, आप उन तक पहुंच सकते हो और उसमें से अपने क्लाइंटाइल को आप जनरेट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. नाउ समथिंग अबाउट इंडिया एंड इंटरनेट. सी, आई एम श्योर आप लोग सब इंटरनेट पे हो, यू आर यूजिंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स विद फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर. आई एम श्योर आप लोग यूज कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस. बट मेजर चेंज कब आया इंडिया के इंटरनेट कंजम्पशन में? इट वाज इन 2016 व्हेन मुकेश अंबानी गॉट जियो into the industry. और वो दिन से the consumption has just grown. Okay, तो पहले क्या होता था ना, 1 GB का हम 250 रुपया खर्चा करते थे ऑलमोस्ट वो टाइम पे, एंड देन दे केम इन विथ 250 रुपए में 1 GB पर डे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 30 GB अ मंथ विथ 250 रुपीज. सो ये वो दिन था और आज दिन है कि ये हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन ग्रो ही होते जा रहा है, हमारा इंटरनेट कंजम्पशन बहुत ग्रो हो गया है. इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग और इफेक्टिव हो गया है. So on an average, I would like to share just one analysis that, a user, Indian user is using 13.5 GB per month. There was a time we were using hardly 1 GB. मतलब 1 GB भी हम लोग यूज करने के लिए सोचते थे, डरते थे. आज की तारीख में average Indian user is using 13.5 GB per month. So that is the kind of usage we have from India currently. So this gives us a lot of scope when it comes to digital marketing. Now, let's talk about all the platforms that we have. अब डिजिटल मार्केटिंग तो मैंने आपको बताया, अभी कौन से प्लेटफॉर्म्स है, मेजर प्लेटफॉर्म्स आई एम गोइंग टू कवर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी हैव गूगल, वी हैव फेसबुक, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव ट्विटर एंड वी हैव लिंक्डइन. ठीक है, दीज आर द मेजर प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव इन डिजिटल मार्केटिंग दैट वी यूज. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विथ इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स की फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, वो कैसे काम करता है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम some jargon, some just one second, terminology that I will be using. ठीक है, तो क्या होगा ना, आपको ये मैं अभी समझा दूंगा तो आगे जब मैं इनको यूज करूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी exactly what I am saying. So first terminology and the most important terminology is click through rate. If you have a book and pen, you write this down because CTR is the most effective way of measuring your performance of a campaign. ठीक है, अगर CTR का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ. क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी एड एक सेट ऑफ ऑडियंस को दिखाते हो, उसमें से कितने परसेंटेज लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया है, उसको बोलते हैं CTR. ओके, फॉर एग्जांपल अगर 1000 इंप्रेशंस हमारे हुए हैं और उसमें से हमको 10 क्लिक्स मिले हैं, तो आपका उससे CTR कैलकुलेट होता है. गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट कैलकुलेटिंग योर CTR. And your CTR, say if I tell you have a CTR of 10%, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1000 इंप्रेशन में 100 लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया है. That is what is CTR. Okay. Now CPM, second most important term. What is CPM? तो पहले क्या होता था ना, जब न्यूज़पेपर्स में हम एड्स डालते थे तो हमको साइज के हिसाब से चार्ज किया जाता था. नाउ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये आपको CPM के बेसिस पे चार्ज करते हैं, कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन. तो ये इंप्रेशन बेस्ड चार्ज को हम CPM बोलते हैं. ठीक है, so how much you pay for every 1000 impressions is called CPM. It can be 100 rupees to 1000 rupees to even 2000 rupees. So it all varies depending कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो. तो अगर आपको कोई बोलता है we are going to charge you on CPM, now you know कि वो CPM का मतलब क्या है. If any agency comes to you, if any company you are hiring and they tell you that हम आपको CPM के बेसिस पे चार्ज करेंगे, एक एवरेज CPM आपका 100 रुपया होगा, उसका मतलब ये है कि you will be spending 100 rupees for every 1000 impressions. 1000 impression का मतलब ये है कि आपकी एड 1000 बार दिखेगी आपके टारगेट ऑडियंस में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट पर क्लिक. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कॉस्ट पर क्लिक क्या है? दैट व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड, वो आपको कितना कॉस्ट इनकर होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज CPC, कॉस्ट पर क्लिक. पे पर क्लिक एंड कॉस्ट पर क्लिक ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर आपको कोई PPC बोल रहा है, CPC बोल रहा है, मोर और लेस द सेम. दिस मीन्स दैट यू आर पेइंग फॉर एवरी क्लिक, और वो कितना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है. दिस इज कॉल्ड CPC एंड PPC. कॉल टू एक्शन. अब जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डालते हो, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन डाल दी और सामने किसने आपका अगर इंफॉर्मेशन देखा, फॉर एग्जांपल आपने अपने फेसबुक वॉल पे कुछ अपना एक ऑफरिंग डाल दिया, और अगर वो किसी ने देखा और उसको पता नहीं है नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, तो उधर हम बोलते हैं आपको CTA डालना चाहिए, कॉल टू एक्शन. इसका मतलब क्या होता है? दैट यू आर पुटिंग अ बटन. ओके,
which will help them, which will help the people who are interested to reach out to you in some or the other. ठीक है, now ये CTA किस फॉर्म में हो सकता है? व्यू वेबसाइट, व्यू मोर, लर्न मोर, कॉल नाउ. आई एम श्योर आप जब अगर फेसबुक यूज कर रहे होगे तो आपने ये सब में बटन देखा होगा, मैसेज नाउ. So these are called CTAs, where a person can, you know, reach out to you using that button. Now, one more term is remarketing. I'm sure a lot of you must have bought products of Amazon, of Flipkart. अगर आपने notice किया होगा that, you know, when you go and browse on any product and you look at a product but you don't end up buying it, तो ये प्रोडक्ट का जो एड है ना, आप जो भी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप न्यूज वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको वो एड दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक न्यू एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैकबुक प्रो. आपने वो जाके अमेजोन पे प्राइस देख लिया बट खरीदा नहीं. बट वो मैकबुक प्रो आप अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के साइट पे जा रहे हो तो उसका ऐड दिख रहा है आपको. फिर से आप कोई एनडीटीवी के साइट पे जा रहे हो तो वहां पे आपको ऐड दिख रहा है. सो व्हाट इज दैट? दैट ऐड इज फॉलोइंग यू. दैट मीन्स दैट पर्सन इज रीमार्केटिंग टू यू. Amazon is remarketing to you. Flipkart is remarketing that product to you. ठीक है. Now, how it is done? Basically, it is done with the use of cookies. We'll not really go into that. Basically, anyone who visits a particular page and then sees that ad again is remarketing. Now, I hope I have explained you all these terminologies in the best way possible. Okay. Now we will be starting with our first platform. So our very first platform that we'll be taking up, and the most important one, is Google. I'm sure Google हर कोई day-to-day basis पे use कर रहा है, and everyone knows about Google. So मैं आपको बताऊंगा as a business how this can, you know, really benefit you. So सबसे first thing, you know, that when anyone starts up a business, the first thing that you should do, and that will help you establish your online presence. Step one of establishing online presence is setting up your Google My Business. Now, Google My Business क्या है? जब भी आप कोई लोकल बिजनेस या कोई भी बिजनेस के बारे में गूगल पे सर्च करते हो तो यू सी राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स बन के आता है जिसमें वो बिजनेस का नाम, उसका मैप, उसकी रेटिंग्स, उसके रिव्यूज और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट एड्रेस सब आपको वहां पे दिख जाता है. सो दैट इज कॉल्ड गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग. ओके. सो फर्स्ट थिंग एज अ बिजनेस व्हाट यू हैव टू डू इज अपना गूगल माई बिजनेस सेटअप करना है. ओके. नाउ हाउ डू यू डू इट? आपको गूगल माई बिजनेस की before I get into explaining these points, मैं आपको ये समझा दूं that ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल माई बिजनेस सेटअप करना, फेसबुक का पेज सेटअप करना, इसके लिंक्स ने हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट में सब एक साथ कोलेट किए हैं और ये डॉक्यूमेंट हम आपको इंडिविजुअली ईमेल पे भेज देंगे, आपके ईमेल आईडी पे जिससे आपने ये वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है. सो यू डोंट नीड टू वरी. ये सारे साइन अप के लिंक्स गूगल माई बिजनेस के, फेसबुक के, ऑल ऑफ दिस विल कम टू यू इन अ डॉक्यूमेंट. वहां पे आप खाली क्लिक कीजिए, एकदम सिंपल फॉर्म है, वहां पे फिल करोगे, आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग और सिमिलरली बाकी प्लेटफॉर्म्स का आपका साइन अप हो जाएगा. सो नाउ कमिंग बैक टू गूगल माई बिजनेस. ठीक है. गूगल माई बिजनेस में आपको साइन अप करना है जिसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. आपको स्टेप्स बता देता हूँ. यू साइन इन टू योर गूगल माई बिजनेस. अपने बिजनेस का नाम आपको ऐड करना है, आपको लोकेशन मैप पे डालना है कि आपका बिजनेस किधर है, आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है और उसके बाद आपको वो लिस्टिंग मैनेज करने का ऑप्शन आ जाता है. अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है आपके ऑफिस एड्रेस में तो एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट वन पेज. सो गूगल माई बिजनेस का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गूगल माई बिजनेस. आई एम श्योर अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको ये कभी ना कभी यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस. ओके. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रियल एस्टेट ब्रोकर इन थाने. एज यू कैन सी लिव नेस्ट. दिस इज एन एग्जांपल. अगर आप लिव नेस्ट थाने सर्च करोगे तो इस तरह से आपको उसका बिजनेस लिस्टिंग दिख जाएगा. नाउ आई विल टेल यू सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस. Okay, before I go to the best practices, let me tell you, now every platform has two aspects. Okay, one is the organic and one is the paid. So we are going to cover majorly the organic side and a little bit of paid side where we'll show you how to set up a campaign. So now coming to the paid side of Google, अभी जो Google My Business है ये तो completely free है. ठीक है. गूगल के पेड प्रोडक्ट्स क्या है जहाँ पे आप पे करके आप एडवर्टाइज कर सकते हो? सर्च एड्स. अगर आप कभी भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो कोई प्रोडक्ट, आप एग्जांपल आपने iPhone 10 सर्च कर दिया, iPhone 11 सर्च कर दिया, तो यू विल गेट 2 listings on the top जहाँ पे ना एड लिख के आएगा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे. सो दैट इज कॉल्ड सर्च एड. सो यू कैन सेट अप सर्च एड्स फॉर सर्च क्वेरीज. ठीक है. विल नॉट रियली गो डीप इनटू दैट. यू हैव सर्च एड्स, यू हैव डिस्प्ले एड्स. अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो या कोई वेबसाइट पे आप अगर ऐड देखते हो, सो दोज आर कॉल्ड डिस्प्ले एड्स. ओके. वीडियो एड्स. अगर आप यूट्यूब देखते हो, यू नो बिफोर एवरी वीडियो दैट यू सी आपको आजकल ऐड तो आती है और बीच में भी काफी सारी एड्स है. सो दोज आर कॉल्ड वीडियो एड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट पे भी अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो कोई ऑटोमेटिक वीडियो चालू हो जाता है तो इवन दैट इज कॉल्ड वीडियो एड्स.
ऐप एड्स, अगर आपके पास कोई एड ऐप है, अगर आपको प्रमोट करना है तो वो गूगल के ऑफरिंग है सेपरेटली ऐप एड्स, अपने ऐप को आप एडवर्टाइज कर सकते हैं गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करके। नाउ लेट मी टेल यू गूगल माई बिजनेस के साथ आपको क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सेटअप करते हो तो वहां पे आपको गूगल ने एक वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन दिया है। नाउ मोस्ट ऑफ यू always must be thinking, देखो I'm sure some of you have a website but I'm sure a lot of you don't have a website। now अभी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपने कभी ना कभी तो कोटेशन निकाला होगा, एंड दैट कॉस्ट वो शायद किसको चलेगा किसको नहीं चलेगा, someone can afford, someone can't। so what you can do is I'll tell you a free way of doing it। go to Google My Business, set up your My Business, and वहां पे ना create my website का एक ऑप्शन है। Google gives you an option to create a website for free। okay, now obviously you can't have a payment gateway or you can't sell directly from there, but आपके business का website Google आपको free में provide कर रहा है। so this is one thing that you should be doing। okay, if you don't have a Google business listing, आज ही जाओ Google My Business listing का सर्च करो, हम आपको लिंक भेजेंगे, वो लिंक से क्लिक करो और अपना My listing आप पुट अप करो गूगल पे। नाउ उसमें क्या करना है, गूगल माई बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। पहले तो अपना वेबसाइट क्रिएट करना है। सेकेंडली आपको अपने फोटोज, बिजनेस के फोटोज, बिजनेस के ऑफरिंग्स उसमें अपलोड करने हैं। बिकॉज गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में कॉन्टैक्ट करने के पहले बहुत बार ना लोग आपके फोटोज भी देखते हैं, तो आपके फोटोज इन आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के। सो यू हैव टू अपलोड दोस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। ओके, दीज फोटोज और वीडियोज शुड बी वेरी क्लियर, मेक श्योर दे आर वेरी क्लियर एंड यू पुट देम अप। मेक श्योर यू इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट नंबर इन योर लिस्टिंग। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला तो वो आप तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। और एक मैं आपको छोटा सा एडवाइस देता हूँ, अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल आप अगर रियल एस्टेट ब्रोकिंग में हो या अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, तो ऑलवेज यूज अ कीवर्ड विथ योर नेम। जब आप गूगल माई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसमें आपको एक कीवर्ड अपने नाम के आगे लगाना है। अब कीवर्ड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट बिजनेस के नाम से सर्च नहीं करते हैं। मैं एक रियल एस्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मेरे को एक रियल एस्टेट ब्रोकर चेंबूर का मेरे को सर्च करना है, तो मैं शायद मेरे को रियल एस्टेट ब्रोकर चेंबूर के नाम नहीं पता है, तो मैं क्या सर्च करूंगा गूगल पे, तो मैं सर्च करूंगा रियल एस्टेट ब्रोकर इन चेंबूर या रियल एस्टेट एडवाइजर इन चेंबूर। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दिस इज अ सर्च क्वेरी। तो ये जो सर्च क्वेरी है ना, ये आप अपने बिजनेस नेम के साथ ऐड कीजिए। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इन बोरीवली, रियल एस्टेट एडवाइजर इन चेंबूर। तो अगर आप जब भी आप अपना गूगल बिजनेस सेटअप करते हो, बिजनेस नेम के आगे एक हाइफन लगाइए। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, प्रूडेंट प्रॉपर्टीज अगर हमारा बिजनेस का नाम है, हाइफन रियल एस्टेट एडवाइजर इन मुंबई, ठीक है। तो खाली प्रूडेंट प्रॉपर्टीज लिख के मत छोड़िए, उसके बाजू में एक हाइफन लगाइए और उसके आगे एक कीवर्ड डाल दीजिए जो आपके बिजनेस के साथ रेलेवेंट है। इससे क्या होगा, जब कोई रियल एस्टेट एडवाइजर इन थाने, चेंबूर या फाइनेंशियल एडवाइजर इन बोरीवली जब कोई सर्च करेगा तो गूगल सबसे पहला लिस्टिंग आपका दिखाएगा। ओके, सो यहां से आपकी लीड जनरेट होना चालू हो जाएगी विद टाइम। ओके, नाउ वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जब हम के लिए सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल चलो हम Amazon पे गए, वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी गो एंड लुक एट द रिव्यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर बिजनेस that you should have good reviews on Google My Business listing। Now आप बोलोगे ये कैसे करते हैं, तो इसमें Google My Business में आप जाओगे ना, तो वहां पे रेटिंग एंड रिव्यूज का एक ऑप्शन है। वहां पे एक आपको लिंक मिलता है, जो लिंक अगेन हम आपको डॉक्यूमेंट में शेयर करेंगे। वो लिंक अपने आप क्लाइंट्स को भेजिए और उनको बोलिए कि हमको यहाँ पे आप रेट और रिव्यू कीजिए। व्हाट विल हैपन इज, नेक्स्ट टाइम कोई नया क्लाइंट आपके लिए सर्च कर रहा है और ही कम्स अक्रॉस यू ऑन गूगल, वो आपका रिव्यू पढ़ेगा और आप तक आएगा। इससे आपकी लीड्स ज्यादा जनरेट होगी, इससे लोगों को आप पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। So you have to ensure आपके clients आपको rate और review करे in Google My Business listing। Now अगर आप बोलो कि मेरा recently set up है business, so what should I do to get reviews? आप अपने friends और family को दीजिए, उनको बोलिए कि आप reviews डालिए। Initial set of reviews अगर आपको friends और family से लेना है तो आप ले सकते हो, but ensure कि आपको reviews हो, तो उससे थोड़ा credibility आपके business का establish होता है। Okay? Now there's one more option in Google My Business कि आप अपना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पोस्ट कर सकते हो, राइट। जैसे हम लोग कैसे फेसबुक पे डे टू डे अपडेट्स डालते हैं, हम किधर गए, हम वेकेशन पे गए, वी पुट अप पोस्टिंग्स। सिमिलरली आप अपने गूगल माई बिजनेस पे भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे अपडेट्स डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है, जितना आपने ज्यादा डेटा गूगल माई बिजनेस में डाला, जितना कंप्लीट आपका प्रोफाइल होगा, उतना गूगल आपको हायर रैंक करेगा जब कोई नेक्स्ट आपके रिलेटेड सर्च आएगा गूगल पे। तो
सो इंश्योर जितना आपके पास डेटा है, जितना आपसे हो सके आप इसको पूरी तरह भर के रखिए. गूगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to establishing your online presence. The very first step is have your Google My Business listing, have it complete in all aspects, get your free website, and make sure you have good reviews on that. And this will give you the initial presence that you require. Okay. Now, next that we are taking up is Facebook. Now, I'm sure all of you are active on Facebook, right? And usually हमने जब देखा था, we were doing a research and we came across this analysis that an average user spends 2 hours and 25 minutes on Facebook. Now, this is an average time spent by an Indian user. ठीक है, तो 2.25 घंटा ऑन एन एवरेज हर कोई यूज कर रहा है. कोई ज्यादा भी यूज करता है, कोई कम भी करता है. एक एवरेज 2.25 घंटा है. एंड ट्रस्ट मी, विद द लॉकडाउन दिस टाइम हैज गॉन अप. Okay, so Facebook is very very important when it comes to having a presence and lead generating, and I'm sure most of you must be already generating leads via that. So I'll cover both the aspects today of Facebook. I'll cover the paid aspect as well as I'll cover the organic aspect. Okay, now what all comes in organic aspect of Facebook? Let me tell you that. So Facebook ka marketplace, I'm not sure when you're using Facebook, I don't know how many of you all have actually explored marketplace, but it is very very powerful. और काफी लोग ये यूज कर रहे हैं. आपको जाके देखना चाहिए कि कितनी लिस्टिंग्स डे टू डे बेसिस पे आ रही है. काफी ब्रोकर्स से हम जब इंटरेक्ट करते हैं जैसे कि हमको मार्केट प्लेस से रेंटल की इंक्वायरीज आ रही है, हमको मार्केट प्लेस से रीसेल और न्यू प्रोजेक्ट्स की भी इंक्वायरीज आ रही है. सो इट इज वन थिंग दैट इज नॉट रियली बीन टैप्ड इनटू. आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टैप इनटू मार्केट प्लेस. फ्री लिस्टिंग्स है, फ्री है, आपको कुछ पैसे नहीं बनने हैं, आप अपनी लिस्टिंग्स डाल सकते हो मार्केट प्लेस. ओके, ये मार्केट प्लेस का आइकन आई विल शो यू in the next slide कि कहाँ पे दिखता है और कैसे करना है. Then is Facebook groups. As you know, हर एक प्रोडक्ट रिलेटेड ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, तो आपके बिजनेस रिलेटेड भी ग्रुप्स होते हैं, आपके क्लाइंट रिलेटेड भी ग्रुप्स होते हैं. लाइक फ्लैट्स फॉर रेंट इन मुंबई करके एक ग्रुप है, रियल्टर्स इन मुंबई करके एक ग्रुप है. सो देयर आर मेनी सच ग्रुप्स ऑन फेसबुक जो आपको ज्वाइन करने चाहिए. दैट विल रियली बेनिफिट योर बिजनेस. आप अपना उधर ऑफरिंग्स डालिए और आपको वहां से इंक्वायरीज आएगी. Now, the 2 paid aspects would be Facebook ads and Facebook. Facebook ads would be the paid aspect. Facebook business page is completely free of cost. So creating a profile is completely free of cost on Facebook. And then you have the paid aspect, which is Facebook ads. So now we are going to show you how exactly to go about creating a business page. So first thing that you do on Facebook for your business is as you created a business page on Google, business listing on Google, similarly, you will be creating a business page on Facebook. Now, why is it important? ठीक है, आप बोलोगे फेसबुक पे थोड़ा ना कोई सर्च करता है पेज पे आने के लिए, बट आई वुड टेल यू, जब गूगल पे हम सर्च करते हैं, आपका ऊपर गूगल लिस्टिंग दिखता है, आपका वेबसाइट दिखता है, उसके बाद आपका फेसबुक पेज दिखता है. बिकॉज फेसबुक का खुद का बहुत डोमेन क्रेडिबल है. ठीक है, सो व्हेन पीपल सी दैट यू आर प्रेजेंट ऑन गूगल माय बिजनेस, यू आर प्रेजेंट, you have your own website, you have a Facebook page, this really adds credibility to your brand. So it is very important for you to have a business page. First you set up your Google business account, and then second thing you do very important is set up a Facebook business page. ठीक है, नाउ इस पेज में ये कुछ स्टेप्स हैं आपके स्क्रीन के सामने. वेरी सिंपल. आई एम श्योर आप लोग ने काफी जगहों पे साइन अप अपने फेसबुक पेज जब अपना बनाया था खुद का प्रोफाइल का, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. जस्ट डिफरेंस इज आपको अपना बिजनेस नेम ऐड करना है, आपको अपना लोगो अपलोड करना है, अपना एड्रेस डालना है, अपने मैप पे अपना एड्रेस मार्क करना है. ठीक है, सो इस तरह से आपको एक लिंक दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे ईमेल पे, जहां पे आप वो क्लिक करके एक सिंपल प्रोसेस है, वो 5-6 चीजें डालनी है और वो पेज क्रिएट हो जाएगा आपका. ओके, फेसबुक मार्केटप्लेस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि it is a place where you can list anything for free. So you have a very easy way of listing properties or your financial products. Just you have to go to the marketplace icon in your app, and then you have a create listing option there, and you can click on that, and there's a simple form. I'll show you in the next slide कि उसको कैसे दिखता है exactly. Okay, Facebook groups. Now I'll tell you, Facebook groups में भी आपको ऊपर search icon में जाके search करना है और वो Facebook groups के आपको suggestions आ जाएंगे. Again, I'm going to show you a snapshot of the same. So these are 2 things that are free of cost. 3 things that are free. Profile page is free, marketplace is free, Facebook groups is free. Use all 3. Make sure you have a business page. Make sure you're listing on marketplace. Make sure you're joining all the groups and posting regularly. बहुत ज़्यादा post नहीं करना, नहीं तो आपको admin ban कर देंगे.
ठीक है। नाउ एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आपके साथ शेयर किया गया है कि मार्केट प्लेस आपको कहाँ से जाना है। देखो मार्केट प्लेस का आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है, व्हेन यू क्लिक ऑन द 3 लाइंस, उसको हम हैमबर्गर बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो। अगर 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपको सबसे पहला स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसमें आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इधर एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी डालनी है तो कैसे डालनी है। ठीक है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग का आपको ऑप्शन है, ऊपर सेल का देखो आइकन है, आपको सेल के आइकन पे क्लिक करना है, उधर होम्स फॉर सेल और रेंट पे क्लिक करना है, और लास्ट आपको स्नैपशॉट में दिख रहा होगा कि एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको वेरी सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट whether it is for sale or rent, you have to upload photographs, you have to put the title, कितना बेडरूम है, कितना वॉशरूम्स है, एड्रेस क्या है, and you have to click on submit and the listing is done. So it is very simple. If you've not tried it, try it out today. Okay, so next is, you know, how do you go about searching for groups. देखो अगर टॉप राइट कॉर्नर पे ना, फेसबुक पे आपने देखा होगा, अपार्ट फ्रॉम स्क्रोलिंग ऑन टॉप राइट कॉर्नर there is a search icon. Click on that and look for groups related to your business and go and join them. So suppose if you are into property, I'll give you an example. You can just go for Thane Properties, you can join Mumbai Real Estate Group, you can, you know, as soon as you search anything that comes to your mind, you know, Thane Broker Association or real estate in Thane, ऐसे आप रिलेटेड सर्चेस करोगे ना, तो आपको अपने बिजनेस रिलेटेड ग्रुप्स मिलेंगे जिसको आपको ज्वाइन करना है, और वहां पे आपको अपनी जाके ऑफर्स और सर्विसेज डालनी है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डालनी है, और वहां से आपको लीड जनरेट होना चालू हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, ये जो ऑर्गेनिक साइड ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, यू नो, इफ यू से कि मैंने आज फेसबुक पेज क्रिएट किया, आज मैंने गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट किया, तो कुछ कल से मुझे लीड आना चालू हो जाएगी। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। आपको कॉन्स्टेंटली आपके पेज को अपडेट रखना है, आपको पोस्टिंग्स डालनी है, आपको ग्रुप्स पोस्टिंग डालनी है, मार्केट प्लेस पे पोस्टिंग डालनी है, तब जाके आपको स्लोली लीड आना चालू होगी। सो देखो, वन थिंग इज फॉर श्योर, जो फ्री में है ना वो आसान नहीं है। ठीक है, अगर आपको आसान तरीके से निकालना है तो आप स्पेंड कीजिए ऑन एड्स एंड आपको इंस्टेंट लीड आएगी। बट अगर आपको फ्री में कुछ, अगर आपको यहाँ से जनरेशन चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपका बिजनेस का क्रेडिबिलिटी चाहिए, और लॉन्ग टर्म आपको चाहिए कि कॉन्स्टेंटली आपको लीड्स आती रहे, तो आपको ये कॉन्स्टेंटली करना है, और आपको गिव अप नहीं करना है ये सब चीजों पे। यू हैव टू कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली, एंड कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग यू लीड्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है ना, सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन फेसबुक, एज आई टोल्ड यू, देखो फेसबुक पे क्या करना है, सबसे पहले आपको बिजनेस पेज बनाना है। आई विल गिव यू अ लिंक इन दैट पीडीएफ, वहां से जाके आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्रिएटिव्स, फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल, जब आपको महिंद्रा के साथ आपने टाई अप किया, फॉर एग्जांपल महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के साथ, जब वो आपको क्रिएटिव्स भेजते हैं, जैसे ये वेबिनार के बाद भी I would like to tell you that we are going to send you an email with all the creatives of Mahindra Life Spaces Happiness Project, जो आप यूज करके, आप जो आज हम आपको बता रहे हैं वो आप अपने पेज पे कर सकते हैं, और अपने पेज पे जाके वो पोस्टिंग्स कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, ऑब्वियसली यू कैन रीच टू अस। सो व्हाट यू हैव टू डू, हाई क्वालिटी क्रिएटर्स जब भी आपको आते हैं ना, आपको ये पोस्ट करते रहना है अपने पेजेस से। सेकंड, इसमें ना आपको कॉल टू एक्शन ऐड करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप फेसबुक अपने बिजनेस पेज से पोस्ट कर रहे हो, तो वहां पे एक वेबसाइट का लिंक डाल दो, कॉल नाउ के जगह अपना कॉल ये डाल दो, फोन नंबर डाल दो, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक अपना डाल दो। सो समथिंग दैट विल हेल्प द एंड यूजर रीच आउट टू यू इफ ही इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। ठीक है, सीटीए डालना है, और सिंपल लिखना है। यू नो, यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट अलोंग विद योर पोस्ट की, मतलब एक 4-5 पैराग्राफ ऑफ कंटेंट आपने डाल दिया। नो, नॉट मोर देन से 100 to 200 वर्ड्स इन दैट पोस्ट। डोंट मेक इट वेरी टेक्स्ट हैवी। अगर किसको इंटरेस्ट है तो आप तक पहुंच जाएगा। आप थोड़ा सा कंटेंट डालिए जो रेलिवेंट है। वी विल शो यू हाउ मच टू पुट। ओके, वो एक बार आपको हम डेमो में दिखा देंगे। और जो भी आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का सिग्निफिकेंट पोस्ट है, उसको आप पिन करके रखिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, और मार्केट प्लेस आप जो यूज कर रहे हैं, और ग्रुप्स पे अगर आप अपने पोस्टिंग्स डाल रहे हैं, तो मेक श्योर कोई ब्लरी फोटो, स्नैपशॉट निकाल के फोटोज, डोंट यूज दैट। यूज व्हाट द डेवलपर इज सेंडिंग यू, यूज व्हाट योर कंपनी इज सेंडिंग यू टू बी पुट अप, यूज हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स, उससे बहुत एंगेजमेंट मिलता है। Now before we go on to Twitter, now let me show you a very important thing कि अगर हमको एक बिजनेस पेज से पोस्ट करके एक प्रॉपर्टी को बूस्ट करना है, या एक यू नो प्रोडक्ट को बूस्ट करना है, उसका कैंपेन क्रिएट करना है, तो वो कैसे करते हैं। सो आई विल बी शोइंग यू नाउ हाउ टू क्रिएट एन एड ऑफ महिंद्रा हैप्पीनेस वाया फेसबुक बिजनेस पेज।
I think now the interesting part comes. Just 1 second. I hope everyone is awake. बोला ना अभी interesting part आएगा. Yeah. I'll just take 1 minute, guys. You can just wait for a minute. I will just share my screen and I'll show you how to go about it. Okay. So I hope so. Is it visible? Yes. Yeah. So here, as you can see, I am on facebook.com/thepropertist. ये हमारे Facebook का बिजनेस पेज है. ठीक है. सबसे पहला एस्पेक्ट देखो, पेज क्रिएट करना ना बहुत इजी है. इफ यू टेल मी कि पेज क्रिएट करना सिखाओ, देखो फेसबुक प्रोफाइल तो आपने खुद क्रिएट कर लिया, तो फेसबुक पेज भी बिजनेस पेज भी आप कर लोगे खुद ही क्रिएट. दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग हैसल. नाउ इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है फेसबुक बिजनेस पेज में. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज योर this is your logo here. Okay, this is called your cover photo. Okay, जो ऊपर ये आ रहा है ना आपके सामने बड़ा सा फोटो, find your dream home on your preferred property portal. I'm trying to market our website as well at the same time. This is called your cover photo. This is where your logo goes. यहाँ पे आपको अपना business logo डालना है और यहाँ पे अपना cover photo डालना है. तो business logo तो आपके पास होगा. अब हम क्या करेंगे ना, आपको ईमेल जब हम वेबिनार की बात करेंगे, by Monday we'll be sending this email. एक generic cover photo हम आपको बना के दे देंगे जो आप अपने पेजेस पे डाल सकते हो. दैट इज समथिंग दैट वील डू फ्रॉम आवर एंड फॉर यू ऑल. ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन यू क्रिएट योर फेसबुक बिजनेस पेज. यहाँ पे देखो, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है. इवन इफ यू डोंट हैव लिस्टिंग्स बिलो, ठीक है, इफ यू हैव एन एम्प्टी पेज, आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा. ठीक है, क्रिएट पोस्ट पे आपको क्लिक करना है. ओके, नाउ क्रिएट पोस्ट करने के लिए आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहले तो आपको अपना टेक्स्ट रेडी होना चाहिए. ओके, उसके बाद आपके पास क्रिएटिव होना चाहिए. आपको क्या डालना है? क्रिएटिव कैन बी अ वीडियो और अ स्टिल इमेज, डजंट मेक अ डिफरेंस. आप वीडियो भी डाल सकते हो, एक स्टिल इमेज भी डाल सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. ओके, एंड उसके बाद आपको अपना वेबसाइट का लिंक या आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आपको इंक्वायरी चाहिए वो रेडी होना चाहिए. नाउ आई विल शो यू हाउ टू गो अबाउट पुटिंग अप एन ऑर्गेनिक पोस्ट, the free part of it and also the paid part of it. Now let's click on create post. Now write something. Okay, अब write something में just give me 1 second. मेरा content ready रखा है मैंने. Yeah, so I will just copy paste it. See, अभी ये है ना, मैंने एक content हमने बनाया है for this project Mahindra Happinest, a landmark project at Kalyan Bhiwandi corridor. By Mahindra Life Spaces, you can just add it. Okay, 1 BHK at 33.65 all inclusive, 2 BHK at 49 lakhs all inclusive. So यहाँ पे आपको ना एकदम short और crisp details डालनी है. You can't put so many things. You can't have your whole table of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. एकदम short में डाल दो. Let the person inquire and then obviously you can tell him कि देखो इसमें और भी options है, right? You don't have to put 1 BHK, different configurations, different pricing. तो वो बहुत clutter हो जाएगा. Starting price डाल दिया सबसे छोटा configuration का लेके, even that is enough. Let them come to you. And then you can tell them, yes, I have more options. Yes, I have parking charges भी है. Yes, इसमें आपका stamp duty included है, 2 साल का maintenance. So we'll try to cover what is very important, जिससे ना वो attract होगा. You have to put up things जो USPs है. Always identify USP of a project or your product when you put it up on Facebook, and ensure that you've included it in your text. देखो अभी हमने क्या किया है, pricing डाल दिया है. सबसे important क्या होता है? Project का location और project का pricing. When it comes to real estate, ये 2 चीज हमने सबसे पहले कवर कर ली है. उसके बाद हमने क्लिक फॉर मोर डिटेल्स दे दिया है. ठीक है, अगर इतने से ही कोई कन्विंस हो गया ना, तो वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा. अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप ये वेबसाइट पे डालिए. डेवलपर का वेबसाइट डालेंगे तो आपका लीड फॉल आउट हो जाएगा. यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट. अगर नहीं है तो यू कैन हैव अ कॉल नाउ ऑप्शन हियर. कॉल नाउ में अपना नंबर आप डाल सकते हो. ओके, इफ यू डोंट हैव अ वेबसाइट, सेकंड आपको क्या डालना है? प्राइसिंग के बाद आपको क्या डालना है? कॉल नाउ का अपना फोन नंबर डालना है. और उसके बाद कुछ हाईलाइट्स देखो जिस तरह हमने दिए हैं उस तरह आपको डालने हैं. तो ये जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है ना, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इन दैट ईमेल कि अगर आपको महिंद्रा हैप्पीनेस्ट का लिस्टिंग डालना है और आपको एक ट्रायल कैंपेन रन करना है, सो दिस इज यू यूज दिस टेक्स्ट एंड यू कैन सेट अप अ कैंपेन और पुट अप अ पोस्ट डिपेंडिंग ऑन यू. अगर आपको थोड़ा स्पेंड करके ट्राई करना है, कैसे करना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल.
तो इस तरह से देखो, फिर हमने एमिनिटीज हाइलाइट्स डाल दिया, फिर हमने एमिनिटीज डाल दी। तो इसके बाद ना हमने और कुछ नहीं डाला। देयर इज अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव ऑन योर हैंड, बट एडवाइजेबल नहीं है इससे ज्यादा कंटेंट डालना, बिकॉज इतना टाइम लोगों के पास जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं होता नहीं है। वो मिनी सेकंड के अंदर वो देखेंगे, पसंद आया तो क्लिक करेंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंटेंट पोस्ट कर दिया। इसके बाद देखिए ऐड टू योर पोस्ट में ना ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे फोटो और वीडियो का ऑप्शन है, आपको फोटो और वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करना है और आपको वो फोटो सिलेक्ट करना है जो आपको पोस्ट के साथ डालना है। ओके, ये जो अभी क्रिएटिव हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज समथिंग दैट वी विल शेयर विथ यू। देखो हमने इसमें क्या किया है, ज्यादा कुछ कंटेंट डाला नहीं है। इट शुड नॉट बी कंटेंट हेवी व्हेन यू पुट अप एनीथिंग, मतलब पूरा टेक्स्ट 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 रहेगा ना तो पीपल डोंट रीड ऑन फेसबुक। सो यू हैव टू हैव मिनिमल टेक्स्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दिया, 1 BHK 2 BHK, लोकेशन, लोगो ऑफ द डेवलपर, लोगो ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन वी क्लिक ऑन पोस्ट। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, 2 चीजें की। हमने कंटेंट रेडी करके कंटेंट डाला और नीचे से एक फोटो अटैच कर दिया और उसको पोस्ट कर दिया। वेरी सिंपल वे ऑफ सेटिंग अप अ कैंपेन। ठीक है, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ जहां से आप कर भी सको। देखो अगर चाहिए तो मैं बिजनेस, आई एम श्योर आप में से 10% लोगों ने ना बिजनेस मैनेजर देखा होगा और उसमें से आपने कैंपेन एक्सपेक्ट किया होगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो वो है ना, सबको आप देख तो लोगे, पर जब आप करने जाओगे ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो इजी नहीं है करना। तो मैं आपको सबसे इजी वे दिखा रहा हूँ, आपको लीड कैसे जनरेट करनी है वाया पेड मार्केटिंग। आपने पेज से आपने पोस्ट डाल दिया, इस तरह से देखो देखो दिखेगा, द प्रॉपर्टीज पब्लिश बाय तेज अगनानी, देखो हमने डाल दिया। और सी मोर के पहले देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी कवर हो गई। ठीक है, सो स्टार्टिंग के जो 3-4 लाइन्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे क्या पोस्ट करते हो। नाउ सी हाउ क्लीन एंड क्लियर दिस पोस्ट इज, इट इज वेरी क्लियर। आपको दिख रहा है लोकेशन कहाँ है, आपको दिख रहा है प्राइस क्या है। इसमें आपको पोजेशन भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको टेक्स्ट जब भेजेंगे उसमें पोजेशन भी डाल के देंगे, नहीं तो लीड फॉलो आउट होती है। ठीक है, अब here at the bottom you can see this boost post option। ठीक है, what is boost post? पहले क्या होता था ना, खाली एंगेजमेंट के लिए यहाँ से बूस्ट होता था, अब यहाँ से लीड भी जनरेट होती है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। क्लिक ऑन बूस्ट पोस्ट। नाउ स्टेप बाय स्टेप आई शो यू what is to be done। आप बहुत ध्यान देना ये चीज को। ओके, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वेबिनार एंड वी आर गोइंग टू पुट इट अप। यू कैन स्पेशली वॉच दिस सेगमेंट ऑफ द वेबिनार अगेन, बट अभी ध्यान दीजिए ना। यहाँ पे ना गोल में ऑटोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गेट मोर लीड्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर कॉल्स। ठीक है, ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाते हैं। सो यू डोंट रियली नीड टू गो इनटू एन एड्स मैनेजर टू सेट अप एन अकाउंट एंड सेट अप अ कैंपेन फ्रॉम देयर। ठीक है, हम यहाँ से ना सिंपल करेंगे गेट मोर कॉल्स। ओके, अब ये है ना कॉल नाउ का ऑप्शन हो गया। अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आपको वेबसाइट विजिटर चाहिए तो यहाँ पे अगर आप सेव करोगे तो आपके वेबसाइट का वो ऑप्शन पूछेगा। जस्ट गिव मी 1 सेक, ये लोड हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक समथिंग विद द इंटरनेट। देखो नाउ ये जो बटन लेबल है ना, दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग CTA। ठीक है, आपको बटन आपके पोस्ट में होना बहुत जरूरी है। ओके, बुक नाउ चाहिए तो बुक नाउ डाल दो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो सबसे इजी क्या है, 2 सबसे इजी है जहां पे सबसे ज्यादा हमने रिस्पॉन्स देखे हैं, कॉल नाउ और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। ओके, अगर आपको बिजनेस व्हाट्सएप पे सीधा रिप्लाई चाहिए तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ का ऑप्शन डालना है तो कॉल नाउ का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपका समझो फोन नंबर, मैं अपना फोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके, इसमें आपने अपना कंट्री कोड डाल दिया, उसके बाद अपना फोन नंबर ऐड कर दिया, ये ग्रीन हो गया। स्पेशल ऐड कैटेगरी को कुछ भी नहीं करना, वो खाली पॉलिटिकल और सोशल एड्स के ऊपर होता है, यू डोंट हैव टू टच दैट। नाउ कम्स द ऑडियंस। नाउ फेसबुक पे ना जो टारगेटिंग आपको अवेलेबल है, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीजों से आप लोगों तक पहुंच सकते हो। आपके पास बहुत सारी टारगेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट मी शो यू व्हाट ऑल इज अवेलेबल फॉर यू। ओके, नाउ सबसे एक है ना, एक कस्टमाइज्ड ऑडियंस को टारगेट करने का एक आपको ऑप्शन है। Second है people who like your page, people who like your page and their friends, and then people in your local area. We will not touch any of these। ठीक है,
पीपल हु लाइक योर पेज आपको तब करना है जब भी आपको अपने पेज के लाइक्स आपके बहुत हो गए हों और उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो जैसे ये वेबिनार किया तो वी डिड दैट कैंपेन, बट आइडियली फॉर लीड जनरेशन ये काम का नहीं है। यू हैव टू टारगेट योर टारगेट ऑडियंस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। नाउ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ऑडियंस आप कैसे सेट करेंगे। देखो एडिट का ये जो पेन का ऑप्शन है ना, दिस इज कॉल्ड द एडिट बटन। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। एक पॉपअप खुलेगा। सबसे पहले आपको आएगा जेंडर। सो दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक टारगेटिंग। सबसे पहला आएगा जेंडर। जेंडर में मेन विमेन ऑल जेंडर्स, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। सेकंड इज एज। नाउ रियल एस्टेट में ना व्हाट वी सीन, जो भी है ना 28 एंड अबाउ से हमारा लीड्स जनरेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो वी टारगेट 28। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 25, बट हम जब भी सेटअप करते हैं हम लोग 28 प्लस ही करते हैं। सो आई एम डूइंग दैट हियर। एंड देन आ जाता है लोकेशंस। यू कैन टारगेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम महिंद्रा हैप्पीनेस कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है? इसके लिए सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है ना थाने है। सो यहाँ पे हम थाने लिख देंगे। थाने प्लस 40 किलोमीटर्स ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा आपको। वी डोंट हैव टू टारगेट 40 किलोमीटर्स, दिस इज टू बिग एन ऑडियंस। यहाँ ऐसे करोगे ना तो किसको भी ऐड दिखेगा। सो यू हैव टू नैरो इट डाउन टू 17 किलोमीटर्स। अब आप देखो हमारे थाने के 17 किलोमीटर के रेडियस में ये ऐड दिखेगा। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज, यू कैन डिसाइड वेयर यू वांट टू शो योर एड्स। तो अगर आपको पर्टिकुलरली कोई जगह पे पर्टिकुलर भी जगह पे करना है, ड्रॉप पिन करके आप उधर ऐसा पिन ड्रॉप कर सकते हो। तो देखो बियॉन्ड भिवंडी का भी एरिया हमारा टारगेट हो गया, एंड यहाँ का हम लोग रेडियस डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा करना है। चलो हमने ये 2 ऑडियंस डाल दिए, 2 ज्योग्राफी डाल दिए। नाउ द लास्ट ऑप्शन दैट यू गेट इज डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में व्हाट ऑल ऑप्शंस यू गेट? based targeting, interest based targeting. I guess you all lost me there. Just one second. कपिल सर वो ब्राउज के टाइम पे वो चला गया था, अभी दिख रहा है वापस। वो ब्राउज दबाओ ना प्लीज। जस्ट 1 सेकंड सर, वो वहां पे ना कुछ क्रैश हो रहा है। या सो डन विद द ज्योग्राफी। यहाँ पे ना डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है, वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस लाइक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, वी गेट बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पे आप लोगों के इंटरेस्ट डाल सकते हो, लाइक पीपल इन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट हमने डाल दिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग डाल दिया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स डाल दिया। तो इवन इफ यू कीप इट ओपन, नो प्रॉब्लम, यू हैव एन ऑडियंस ऑफ 68 लाख पीपल। इसमें फेसबुक खुद से भी ऑप्टिमाइज करेगा एग्जैक्टली हाउ टू whom to show this ad to. So not necessarily you have to put anything here. If your geography is defined, if your age group is defined, you're okay. Let the Facebook algorithm show the ads to the people who are likely to react to Facebook algorithm, खुद ही दिखाएगा उनको। अगर आपको डालना है ज्यादा से ज्यादा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक डिटेल टारगेटिंग डाल सकते हो जो हम यूज करते हैं। I'll tell you that it is called prefer high value goods in India. People who prefer high value goods or people who prefer mid and high value goods. Now ये डिटेल टारगेटिंग हम क्यों डालते हैं? I'll tell you, because जो आपका रियल एस्टेट है ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। Just give me 1 second, ये पेज क्रैश हो गया। I'll do it again. So it is an expensive product, so that is why you need to reach out to the cream audience, the cream crowd, people who have that kind of budget and who have that spending. So I'll just show you it. I'll show it to you again. Oh, crash हो गया था पेज। या there you go. देखो इसमें क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? 3 ऑप्शंस है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। नाउ आई विल राइट प्रेफर हाई वैल्यू। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? प्रेफर इन पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और बैक चले जाना है। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, थाने को अपडेट करके 17 किलोमीटर्स। एज ग्रुप हमारा हो गया 28 प्लस, 28 to 65। ओके, नाउ व्हाट इज आवर ऑडियंस? आप देख रहे हो 13 लाख पीपल। पहले कितना था? 67 लाख। डायरेक्टली कितना नैरो हो गया? सीधा 13 लाख पीपल पे। अभी इसको हम सेव कर देंगे।
अब यहाँ पे देखो आप सेव हो गया आपका ऑडियंस डिटेल्स, थाने प्लस 17 किलोमीटर्स, एज 28 to 65, people who match behavior, people in India who prefer high value goods. ये behavior क्या है? Basically anyone who is interacting with products that are expensive on Facebook, वो उनको टारगेट करेगा. अब आप देखो राइट हैंड साइड पे ना आपको एक प्रीव्यू दिख रहा है हमारे ऐड का. डू यू सी दिस? ये पूरा है ना, ये राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा देख रहे हो, दिस इज योर ऐड प्रीव्यू. और नीचे देखो व्हाट्सएप का बटन आ गया, सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप. अगर आपको चाहिए कॉल नाउ तो वहां पे कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा. डिपेंड्स, सी इधर कॉल नाउ और व्हाट्सएप, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. दोनों से आपके लीड्स काफी जनरेट हो जाएंगे. नाउ आफ्टर द ऑडियंस, द ड्यूरेशन. अब ड्यूरेशन अगर आपको, चलो एटलीस्ट यू नो आई वुड सजेस्ट यू शुड कीप इट ऑन फॉर एटलीस्ट अ मंथ इफ यू हैव द बजट. बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक 5-6 दिन तो आप रख ही सकते हो. And then you need to spend at least 80 rupees minimum a day. That is your Facebook का minimum that spending that you need to have. ठीक है, accordingly इधर आपको देखो मिनिमम बजट दिखा रहा है 442. अगर आपको 6 days रन करना है तो आपको 442 रुपीज वो दिखा रहा है कि आपको मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा. तो समझो एक 500 रुपए का बजट हम डाल देते हैं. Okay, on your right hand side you will see they now even charge you a GST amount 90 rupees का. So total your spend would be 590 rupees. Now placements, ठीक है. अब Facebook से ना आप Facebook और Instagram दोनों पे ऐड दिखा सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है. Facebook, Instagram, मैसेंजर. हमको मैसेंजर पे नहीं करना है, मैसेंजर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो डेली बेसिस पे उस पे होते हैं. सो इट इज बेटर यू स्पेंड योर मनी ऑन Facebook एंड Instagram. ये दोनों को टिक रहने दो. अगर आपको खाली फेसबुक पे करना है तो यू कैन अनटिक Instagram एंड जस्ट हैव फेसबुक. तो मिनिमम एक प्लेटफॉर्म तो होना जरूरी है. ठीक है, यहाँ पे पेमेंट मेथड में लास्ट स्टेप ओके ऑफ सेटिंग अप दिस कैंपेन इज ऐड मनी. और यहाँ पे सबसे इजी क्या है, यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिया है आपको. ठीक है, यूपीआई पे क्लिक करके ऐड फंड्स कीजिए. एंड मेरा यूपीआई आईडी मैं डाल के यहाँ से फंड्स ऐड करके, जैसे ही यहाँ पे फंड्स ऐड हो जाएंगे मैं यहाँ पे बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा कैंपेन हो गया सेटअप. ठीक है, वेरी सिंपल. आपको यहाँ पे गोल ऑटोमेटिक रख दो, नो इशू. यू कैन बटन, यू कैन जस्ट सिलेक्ट कॉल नाउ और सेंड व्हाट्सएप मैसेज. either you know it is okay, you can have either of the options. Then audience, select an audience basis the project that you're picking or the product that you have. आपका टारगेट ऑडियंस आपको जानना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी डेवलपर आपको आपका इस तरह से क्रिएटिव बेचता है तो आप उनसे पूछिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा, आपका साइट विजिट्स कहाँ से आया है, आपका बुकिंग्स कहाँ से हुआ है. ये एनालिसिस अगर आपको पता है तो आपको टारगेट ऑडियंस सेट करने में बहुत आसानी होगी. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर यू नो वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज, वेयर योर पोटेंशियल क्लाइंट इज, एंड देन अकॉर्डिंगली. Hitesh, yes sir, a lot of people are asking, sir, what is this pixel? Facebook Pixel, देखो क्या होता है ना, this Pixel is something like a tracking code of Facebook that is supposed to be put on your website. Just one second. देखो यहाँ पे भी है नो पिक्सल, पिक्सल हाँ पेमेंट में ऊपर. या सो पिक्सल क्या होता है ना सर, Facebook gives you a small code that you need to integrate in your website, जिससे Facebook conversions ट्रैक कर सकता है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आए थे. वो मैट्रिक आपको Facebook आपके ऐड में दिखाने लगता है, बिकॉज इट नोज कि Facebook से कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए. ओके, सो इट इज अ कोड दैट यू पुट इन योर वेबसाइट. इज वेरी टेक्निकल. अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो यू डोंट नीड टू बॉदर. अगर आपके पास वेबसाइट है, आपके पास कोई डेवलपर है जो आपका वेबसाइट बना रहा है, तो आप उसको बोलिए कि मेरा Facebook पिक्सल मेरे वेबसाइट में इंटीग्रेट कीजिए, ही विल डू दैट फॉर यू. ओके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड, तो आपको कोड देगा. वो कोड कॉपी करके आपको अपने डेवलपर को देना है. लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट, एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड इट. ठीक है, ऐड मनी करना है. ऐड मनी करके यहाँ पे बूस्ट पोस्ट करना है. वेरी सिंपल. एंड दिस विल boost your post and you will start, once it is approved, it will start reaching out to people. और आपको पेज पे इसका सारा ट्रैकिंग, जहाँ पे बूस्ट पोस्ट था ना, now I'll go back. I hope everyone understood this. जिसको नहीं समझ में आया ना, you know, we will be uploading this on YouTube and you can specifically go to this segment and look at it again.
वेरी सिंपल। उसके बाद भी नहीं समझ में आप हमको ईमेल कीजिए, हम आपको समझाएंगे। Now we are going back to our Facebook page. ठीक है, यहाँ पे देखो पीपल रीच और एंगेजमेंट्स दिखा रहा है। यहाँ पे ना आपको एक पूरा मेट्रिक जैसे ही बूस्ट हो जाएगा, आपको ना यहाँ पे सारा ट्रैक होने लगेगा कि कितने लोगों ने देखा, कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल वर रीच, कितने लाइक्स कमेंट शेयर्स आए, कितने पोस्ट पे क्लिक आए, कितने फोटो व्यू, कितने लिंक व्यू। ठीक है, ये सब आपको कंप्लीट 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे डेटा दिखने लगेगा। ओके, दिस इज वेयर यू कैन ट्रैक। तो सबसे मेन थिंग दैट you should track is आपको response कितने आए out of whatever you spent. So this is what you should focus on majorly. Kapil sir, anything else do you think that needs to be covered? Because I guess I have covered completely how exactly to go about setting up a campaign. Yeah. So yeah, I'll just stop this share. So as you all saw that हमने Facebook पेज पे जाके हमने एक पोस्ट अपलोड किया और वो पोस्ट को हमने बूस्ट किया। वो बूस्ट कैसे किया वो हमने आपको दिखा दिया। Now we will go back to our presentation. अब ये जो हमने पोस्ट के टाइम पे टेक्स्ट डाला और क्रिएटिव डाला, ये हम आपके साथ ईमेल पे शेयर करेंगे। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपके पास अपना बिजनेस पेज है, फेसबुक बिजनेस पेज है, तो वहां पे आप ये स्टेप्स फॉलो करके इमीडिएटली आफ्टर द वेबिनार यू कैन सेट इट अप। ओके, और एल्स आपको हम जो डॉक्यूमेंट देंगे उसमें आपका फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप करने का लिंक है। वेरी सिंपल, 5-6 चीजें हैं, वो सेटअप करके आप ये पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन गो बैक टू द वीडियो, यू कैन हैव अ लुक, और एल्स यू कैन ईमेल योर क्वेरीज टू अस एंड वी विल रिप्लाई बैक टू यू। अगर अभी आपके पास कोई क्वेरीज है तो आफ्टर द वेबिनार वी विल हैव अ Q&A, यू कैन नोट डाउन योर क्वेरीज फॉर नाउ, एंड जब Q&A पे पहुंचेंगे हम तब आप अपने क्वेश्चन आंसर डाल दीजिए। वी विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। मूविंग ऑन। So just 1 second, I will just share. Yeah. Okay, so with this we have covered Facebook marketing. Okay, let me tell you about Facebook. It is very powerful. Okay, Facebook and Instagram are the two most powerful tools that you have at this point of time to market your products and services. Very important you have your online presence. Very important for you to, if you want to generate leads instantly, you use the ads platform जिस तरह मैंने आपको दिखाया, और अपने इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हो। Now coming to Twitter, see, one thing that I'll tell you, Twitter also has two aspects, organic and paid. रियल एस्टेट के लिए मैं ट्विटर ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, बट यू शुड हैव योर ऑनलाइन प्रेजेंस। व्हाई? बिकॉज जब आपका कोई गूगल पे सर्च करता है बिजनेस रिलेटेड, अगर आपका कोई क्लाइंट आपके बारे में रिसर्च कर रहा है, बिकॉज सी अगर ये आज नहीं हो रहा है ना, ये कमिंग टाइम में होने वाला है कि कोई भी बिजनेस के बारे में आज अगर हमको पता चलता है, पहले हम जाके ना गूगल पे रिसर्च करते हैं कि ये बिजनेस क्रेडिबल है कि नहीं है। और क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश होती है? आपका ऑनलाइन एक्टिविटी देख के, आपके रिव्यूज देख के। तो इसमें आदमी क्या देखता है? आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, आपका फेसबुक पेज है, आपका वेबसाइट है, आपका ट्विटर पेज है, आपका लिंक्डइन पेज है। सो योर प्रेजेंस ऑन ऑल दीज वेबसाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सी इफ यू डोंट हैव द टाइम, अगर आपको बहुत टाइम नहीं है, ट्विटर और लिंक्डइन पे आपको पोस्टिंग्स का टाइम नहीं है, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना पोस्टिंग्स कंटिन्यूस रखिए, गूगल पे आप डालिए, ट्विटर पे ओकेजनली यू कैन पुट इट अप। So now coming to Twitter, it is a micro blogging website. It's a social networking service as well, and it has 17.5 million active Indian users. ठीक है, तो यहाँ पे भी people are there, but it is way lesser than Facebook. But you have good engagement on Twitter as well. So I would suggest you have your profile page, which again is free on Twitter. Twitter pe, as you know, you can check the slides, what all options are available. You have followers, you have your profile page, you have handles where you can put out tweets, and you have a 280 character limit when you put out a tweet. I'm sure most of you must be knowing about Twitter. You must be having a page on Twitter. So my suggestion would be have your business page profile on Twitter. Keep posting occasionally and keep interacting with people on Twitter as well on trending topics. Now, one important thing, if you are on Twitter and you're putting tweets up, make sure you're using hashtags, because hashtag से आप लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो hashtag डालना बहुत जरूरी है। ये hashtag अपने बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। जैसे अगर मैं रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ पोस्ट कर रहा हूँ,
तो मैं हैशटैग में डालूंगा रियल एस्टेट, अगर मैं न्यूज डाल रहा हूँ तो मैं रियल एस्टेट के साथ डालूंगा रियल एस्टेट न्यूज। तो दो हैशटैग्स क्या यूज करूंगा, रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट न्यूज। तो सिमिलरली बेसिस व्हाट ट्वीट यू आर पुटिंग अप, you can use a hashtag, which is very important when it comes to Twitter. Okay, Twitter की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कंसाइज मैसेज रखना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है उसके ऊपर। उसमें अपना, अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट्स और सर्विस का फोटो है तो यू शुड अपलोड दैट, एंड हैशटैग्स 2 से ज्यादा नहीं डालने हैं। और ऑल कैप्स में ना, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म पे डोंट पुट अप कंटेंट इन ऑल कैप्स, इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर पीपल टू रीड। ओके, सो नॉर्मल सेंटेंस केस में अपना कंटेंट डालिए। Now coming to the next big social media platform. Now people ask me कि Facebook तो with time obsolete होते जा रहा है, उसका usage कम होते जा रहा है, तो what next? So I tell them Instagram. ठीक है, Instagram का usage day by day बढ़ते जा रहा है, and उसका usage Facebook से भी fast बढ़ रहा है। तो आज अगर समझो Facebook का daily usage है 2 hours 25 minutes, एक साल के बाद अगर वो 2.5 hours हो जाता है, I'm sure Instagram का 3 hours हो जाएगा by then। ठीक है, so with time Instagram will be the next big platform. Even today the traction and the audience that you have on Instagram is huge. Okay, so you need to have presence on Instagram. आपको लगता होगा कि Instagram पे कहाँ सब millennials है, सब बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। Everyone has started using Instagram now, so it is the right time for you to set up a page on Instagram and to connect with your potential audience. Okay, some stats, we have 120 million active users in India currently, and which is really growing at a fast pace. And average time spent by a user on Instagram in India is 45 minutes. I'm sure it must have doubled already in the lockdown period. So again, Instagram की क्या ऑफरिंग्स है बेसिकली, राइट? क्या कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे? आप अपना प्रोफाइल पेज बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आप उस पे पोस्टिंग्स डाल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 2-3 तरह के ऑप्शंस है पोस्टिंग्स के लिए। यू कैन हैव आईजी स्टोरीज, यू कैन हैव आईजी टीवी। आईजी टीवी में अगर आपका 10 मिनट तक का अगर आपका कोई वीडियो आप डाल सकते हो। स्टोरीज में 15 सेकंड का 15 से 20 सेकंड का आप खुद डाल सकते हो। रील्स में भी 15 सेकंड के वीडियोस डाल सकते हो। एंड इंस्टा लाइव कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे लाइक्स हो जाते हैं तो यू कैन गो लाइव। एंड if you are an Instagram user, आपने देखा होगा लाइव होता है ना, तो स्टोरी में सबसे पहला ऑप्शन लाइव का वो दिखता है, if anyone is going live. So that is one option that you can use for your business. So Instagram, I would suggest that you should be very much active along with Facebook, because with time यहाँ से आपको बहुत business आने वाला है. Now Instagram is all about photos and videos. So always remember that you have to use high quality photos on Instagram. तो आपको जो भी डेवलपर से या आपके जो भी पार्टनर से, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रूडेंट पार्टनर हो तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स आ रहा है उसका हाई क्वालिटी फोटो जो आ रहा है एग्जैक्टली वही आपको इधर अपलोड करना है। डेवलपर से कुछ क्रिएटिव्स आ रहे हैं तो आप इधर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर उस पर कॉमेंट करता है तो यू नीड टू रिवर्ट बैक टू देम इंस्टेंटली। ऐसा नहीं कि अपने हफ्ते के बाद देखा और उसको रिवर्ट किया। इफ यू हैव योर बिजनेस पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मेक श्योर टू कीप चेकिंग दैट एवरी वंस, एटलीस्ट वंस अ डे, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू एनीवन हु हैज कमेंटेड ऑन योर पोस्ट। डोंट कीप योर पेज प्राइवेट। इसमें ना एक ऑप्शन है पेज प्राइवेट क्रिएट करने का, तो प्राइवेट नहीं करना, पब्लिक करना है आपको। एंड पोस्ट कंटेंट दैट इज रेलेवेंट टू योर ब्रांड। अभी अगर एक रियल एस्टेट ब्रांड हो, आप इररेलेवेंट पॉलिटिकल पोस्टिंग्स डाल रहे हो, सो दैट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री and specific to your products and services that you're catering. Now keep a track of your competitors. Now most of y'all will ask me, आप बता तो रहे हो कि फेसबुक पे हमको पेज क्रिएट करना चाहिए, ट्विटर पे करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे करना चाहिए, बट हमको पता ही नहीं हम करें क्या, ठीक है। तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिगर आउट योर कॉम्पिटिटर्स। आई एम श्योर आपको सबको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो पता होगा, तो गो सी व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, एंड start your page posting similarly on the same lines. I would not say directly go and copy it, but on the same lines you can go and start putting stuff. And apart from that, देखो हर डेवलपर आपको कुछ ना कुछ ऑफरिंग बेचता रहेगा, कुछ लॉन्च का ऑफर देगा, कुछ क्रिएटिव्स आपको आते रहेंगे व्हाट्सएप पे। यू कैन यूज दैट टू पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम। कुछ अगर आपको न्यूज आती है आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, रेरा गाइडलाइंस में कुछ आ रहा है, रेरा का कुछ न्यू गाइडलाइंस आया, इफ यू वांट टू पुट दैट अप, कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स है, यू वांट टू पुट दैट अप, so you can use these things to put up on these platforms and give out information to people. I think they can refer to Prudent Properties page anytime, because we keep on posting every day any of the content, so they can just use this content and post it. Yeah, so as you heard Kapil sir, he said Prudent Properties का पेज देख लो, Prudent Corporate का पेज देख लो,
and you will get to know what is supposed to be put up. वहां से उठा के अगर आप prudent partner है तो भी डाल दोगे तो I am sure they will not have an issue. You can just put out the same postings and use hashtags. Again, you know, a lot of people last time asked me hashtag होता क्या है. See, hashtag ना एक आपके कंटेंट को टैग करने का तरीका है, सिस्टम को बताने का तरीका है कि आपका कंटेंट किस बारे में है, ओके, एंड उसको डिस्कवर करने में इजी पड़ता है. अगर आप समझो आपने किधर आपने एक पोस्ट देखा, रियल एस्टेट लिखा, रियल एस्टेट हैशटैग के साथ, आपने वो रियल एस्टेट हैशटैग ना वो क्लिकेबल होता है, उस पर आपने क्लिक किया ना तो जितने भी रियल एस्टेट पोस्टिंग्स लोगों ने डाले हैं विद दैट हैशटैग वो आपको दिख जाते हैं. So people can discover your content using hashtags. Hashtags is a way to tag your content and tell the system what is your content about. Okay, so you always use hashtags. इससे आपका content का reach बढ़ेगा, organic reach बढ़ेगा, लोगों को समझ में आएगा आपने किस बारे में post किया है. और consistency is the key. Always remember all these platforms, whether you're using the organic side of it or the paid side of it. अगर आप बोलोगे मैंने एक हफ्ता किया और मुझे कुछ नहीं आया, this is not how digital is going to work. You need to be consistently आपको अपना business page build करना है. I'll give you an example. When we started the properties in 2014, friends और family से हमको 100 likes मिले थे. Today we are at 50,000. ठीक है, organic likes हमने pay करके likes नहीं खरीदी है, तो we are at almost at 50,000 likes. It takes time to reach there. और leads with time आती है. From the first day you will not start getting leads. So start today and you'll have a good online presence with time. And you'll start getting a lot of leads. Now, coming to LinkedIn, LinkedIn as a platform, I'm sure most of you know that LinkedIn is a platform that is mainly used for professional networking. Okay, so you should have presence here, especially if you deal in commercial properties. यहाँ पे decision makers, business owners बहुत हैं. It is easier for you to reach out to such set of people. And India में you have 60.5 million LinkedIn users from India as per an analysis in January 2020. So 60.5 million LinkedIn users थे India में. ठीक है, how to create a LinkedIn page? Again, LinkedIn page create करके रखो. Don't say that I don't have the time. Just create a page. Okay, I'm not saying post consistent. You should, if you have the time, you should consistently put up posts on all these platforms. If you don't have the time, at least set up a LinkedIn page and keep and put up important information like about your business. आपका business कहाँ है, ये सब important details डाल के रखो. आपको document में link मिल जाएगा और उसमें easy tutorial भी है कि आपको कैसे create करना है. Similarly, you can watch the slide that I've shared here. You can see top right hand side corner में आपको एक option है, उधर create a company page का आपको option दिखेगा LinkedIn app के अंदर. वहां से आप अपना page create कर सकते हो. LinkedIn works best for commercial property when it comes to real estate. ये हमने देखा है. ठीक है, दिन में एक पोस्ट एटलीस्ट आपको पोस्ट करना है. when it comes to best practices, use images and videos. Images तो any platform that you go about, don't put text तो खाली कोई पढ़ता ही नहीं है. टेक्स्ट के साथ फोटो होना बहुत जरूरी है. Okay, now I'll give you a small growth hack out here. I'll share you a small suggestion. देखो LinkedIn पे ना एक ऑप्शन है उनका पेड ऑप्शन, which is called premium LinkedIn Premium, right? So इसमें ना आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है. I'm sure most of you must be having a credit card. So what I would suggest you to do is go to LinkedIn and sign up for Premium. For a month you'll get it free, and before that month you discontinue if you want. If you want to continue you can. So इससे क्या होगा ना, आपको email मिलेंगे. Email का मतलब क्या होता है? That you can write to any potential client of yours directly and they can read your message. ठीक है, like an inbox. जैसे आपको वैसे क्या होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है ईमेल करने के लिए. इधर आपको ईमेल की जरूरत नहीं है. वो आप पर्सन का नाम से उनको सर्च कीजिए. अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है, आपको इनमेल मिलेंगे एक लिमिटेड नंबर्स, और वो इनमेल यूज करके आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट टू योर क्लाइंट्स जो बिजनेस ओनर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं. Now, we've covered all these platforms. We've covered Google, we've covered Facebook, we've covered Instagram, we've covered Twitter, LinkedIn. ठीक है. Now, one of the most important tool that you have when it comes to digital marketing is email marketing. Now, digital marketing में email marketing का importance किस चीज के लिए मैं आपको समझाता हूँ. जो आपके पास existing set of clientele है, उस तक पहुंचने के लिए email marketing बहुत काम आता है. ठीक है. तो सोशल मीडिया से हम क्या करते हैं, न्यू यूजर्स तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. बट जब एक बार क्लाइंट कैप्चर हो जाता है, आपकी लीड्स कैप्चर हो गई, समझो आपको 1000 लीड्स का डेटाबेस ऑलरेडी है, उनको आपको नया ऑफरिंग भेजना है, तो फेसबुक पे डालोगे तो ना सब हजारों लोगों को एक टाइम पे दिखने वाला है. ईमेल मार्केटिंग से यू कैन रीच आउट टू देम. ठीक है. तो अपने क्लाइंट्स का ईमेल स्टोर करने का आदत आप डाल दो.
एक अच्छा लिस्ट बनाओ and use email marketing to reach out to them. It is very important. Now I'll share a platform जो आपको free emails देगा. Mailchimp एक प्लेटफॉर्म है. If you can go and search on Google, or else जो हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर करने वाले हैं उसमें हम Mailchimp का आपको लिंक और साइन अप देने वाले हैं. आप Mailchimp एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप 2000 कॉन्टैक्ट्स को आप 6 बार महीने में फ्री ईमेल्स भेज सकते हैं. Okay, so you get up to 12,000 emails free from Mailchimp in a month, and wherein you can send it to 2,000 people in one go. ऐसे 6 बार आप भेज सकते हो. तो Mailchimp पे जाओ, साइन अप करो. I will share you a link, and there you can upload all your email ID, client email IDs, and email create करने का ट्यूटोरियल. See, we don't have the time to show you a tutorial. अगर वो दिखाएंगे ना तो आप लोग सब, I'm sure most of you all will go off to sleep. So we don't want to do that. So what we are doing is we are going to share a document जहाँ पे वो पूरा ट्यूटोरियल का ना वीडियो है, प्लस एक लिंक भी है जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल के बारे में पूरा वो गाइड है. तो you can obviously refer to that. Just one second. I'm sharing the screen again. मेरा PPT बंद हो गया. Just one sec. Okay, so majorly we've covered all aspects of digital marketing. Okay, we have covered email marketing. I gave you a platform जहाँ से आप free में emails भेज सकते हो. Just one second. Now, best practices of email marketing यहाँ पे screen पे है आपके. Okay, what are the best practices of email marketing? Your subject line should be very catchy. Your image should be very clear. ठीक है, ये 2 चीज याद रखो. और heavy image नहीं होना चाहिए. This is one thing that you have to remember. Have a CTA in your email. ठीक है, as I told you, call to action होना बहुत जरूरी है. Call now, learn more, view website, use anything to capture an interested user. ठीक है, put complete emphasis on having a very good subject line. Subject line will define whether a person will open your email or not. Okay. एंड बहुत ज्यादा ईमेल्स भेजने की जरूरत नहीं है. हफ्ते में 1 या 2 ईमेल भेज दिया, मोर देन इनफ. ओके, सो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, हैव अ CTA, एंड ऑलवेज have don't have a very heavy image in your email. Now coming to WhatsApp business. ठीक है, now just one last, I'm sure a lot of people must be already tired with such an extensive presentation. एक last aspect है, उसके बाद we'll go to Q&A directly. ठीक है, अभी ये सारे platforms पे आपका presence हो गया. One very important tool that you should be present on being into business is WhatsApp business. एक WhatsApp business account होना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट के बारे में अपलोड कर सकते हैं. इसमें आप ऑटोमेटेड रिप्लाईज रख सकते हैं जो बहुत प्रोफेशनल आपके बिजनेस को बना देता है. और ग्रीटिंग मैसेजेस डाल सकते हैं. इफ एनीवन सेंड्स हाय, ऑटोमेटेड. सो दिस इज ऑल पॉसिबल विद WhatsApp business. नाउ इसमें one important thing that you need to have is catalogs, and I'm going to share a small video on catalogs and how to create catalog. That is a very small video. Just have a look. It will be really helpful for you to understand. Just one sec. Better way to showcase and share your products and services? Check out Catalog on the WhatsApp Business app, highlighting everything your customers need to know, like pricing, pictures, descriptions of your products. Here's how to get started. Open the WhatsApp Business app. Select Catalog. If you don't see Catalog listed under Business settings, update your app. Add product or service. Tap on the plus icon to add images of the products you wish to showcase. Provide a name and brief description for each product. You can also provide product links and SKU codes to help keep track of your catalog items. Tap Save. Your catalog is now ready. You can also showcase different types of products and services that you offer.
Share these products with your customers directly from the catalog. To see more videos about WhatsApp business tools and features, Yeah. So as you saw, WhatsApp business install करो, उस पे catalogs में अपने products और services डालो. It is very easy to share your listings with people on WhatsApp business. It is very useful. So you should do it today itself. Very easy, ज़्यादा time consuming नहीं है. Play Store, App Store पे जाइए. WhatsApp business का अलग से एक ऐप है, आपका normal WhatsApp पे ये नहीं फीचर मिलेगा आपको. So install WhatsApp business and you can set up your WhatsApp business and have catalog for your products and services. Now, what are the best platforms that I would suggest, you should be present on and best for lead generation? As per our experience, we've seen Facebook, Google, and Instagram. These three platforms are very, very powerful. You should have your presence on this. And कोई भी paid marketing करना है तो ये तीन platforms से तो आपको बहुत अच्छी leads आ जाएगी. Now, these are some of the perks of digital marketing. This is, I guess, our last slide. You get real-time insights. You can put up interactive ads. It gives a boost to brand image. It is very cost effective, and it is the most measurable form of marketing. And you can target any audience in any corner of the world using digital marketing. Okay, so with this, I would say, okay, there's one more slide, so you can just have a look. Okay, with this, I would say, I would conclude by saying have presence on all the platforms. Okay, as and when required, you can get into paid marketing. Use Facebook. It is very, very, very powerful. Use Instagram ads. Facebook use करके Instagram पे advertise कर सकते हो, Facebook पे advertise कर सकते हो. यहाँ से अच्छी leads आती है और consistently आपको अपना profile pages पे activity रखना है, postings रखना है, तब जाके आपको इससे leads generate होना चालू हो जाएगा. Instantly कोई भी product को market करना है तो ads का उनका feature use करके आप lead generate भी कर सकते हो. Okay, with that, we conclude our presentation. If you have any questions, I think we will be taking questions now. Kapil sir, over to you. Thank you, Hitesh. Thank you for the lovely presentation. कल से हम लोग सब Facebook पे आ जाएंगे. I'm sure everyone is there on Facebook already, but उसका जिस तरह से utilize उसको करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं. मैं नहीं हूँ. So please send recorded video of this webinar. Yes, Deepak ji, ये हम YouTube पे upload कर देंगे. हम आपको link भेज देंगे. Okay, one anonymous attendee is asking a question: how to migrate from normal business WhatsApp to normal to business WhatsApp? तो I think it's very simple. Business WhatsApp download कर लीजिए और एक बार open करेंगे तो वो खुद ही पूछ लेगा do you want to migrate from your existing number करके. तो आप yes क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएगा. अगर आप नो क्लिक करके तो नया नंबर ऐड कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. व्हाट आर द चार्जेस फॉर Meenakshi is asking if you want to add short videos, which video app best for that? Instagram is there. You have Facebook as well. So Instagram short videos, yes, Instagram. See, I have seen a couple of brokers, one of them being Rafiq Merchant, putting up short videos of real estate, and काफी followers हैं उनके पास, and I'm sure he must be generating a lot of leads using that platform. So yes, if you have short videos, use Instagram to put it up. And you can obviously advertise using those videos as well if they are in the right dimension. Advertisements and paid advertisement आप कर सकते हो वो use करके. Pradeep Shetty is asking, can you please show us how to use retargeting? Sir, again, remarketing is a very complicated process in which आपका Google का जो tag होता है tag manager से वो आपको install करना पड़ता है. So it is very technical. Sir, you put me an email and we'll guide you. So you can reach out to me on that number and I'll explain you how to go about it. You'll need professional help for that. Rutuja Teli is asking, how can we use YouTube for generating leads? So YouTube majorly has worked for creating awareness.
not much for generating leads. So when it comes to leads, Facebook and Instagram and Google search ads are the best way, and even Google display ads can help you generate leads. So I would suggest when it comes to generating leads, Facebook, Instagram, Google are the best platforms. Google may search ads specifically to generate leads. YouTube say, see, first of all, it's very expensive. And secondly, it is majorly for branding and awareness creation. So my personal suggestion would be, if you want to generate leads, use Facebook, Instagram, and Google search. She is saying that she has her own channel, but she wants to get more leads through it. So आपका अगर चैनल है, अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो मेक श्योर आपके डिस्क्रिप्शन में रीच आउट करने के लिए आपका वेबसाइट लिंक या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड हो. दैट वे जैसे जैसे आपका रीच बढ़ेगा आपका वीडियो का, वैसे वैसे आपको लोग कांटेक्ट करना चालू करेंगे. सो मेक श्योर यू हैव अ CTA in the description, a place where people can reach out to you. That's done. Mr. Vinodji is asking, what's Creative Hub? What's Creative Hub? Now, I am not very aware of that, frankly. Just one second. मेरे एक फ्रेंड का कंपनी का नाम है Creative Hub. So yeah, I don't know which Creative Hub. Vinodji, can you be more specific? We can understand the question. Achha, he has one more question. How do we create a landing page? How do we create a landing page? Okay, there are some free tools which you can use to create landing pages, but ideally I would suggest that you should take professional help and onboard someone to or a freelancer to create a landing page for you. Because see, what happens is, ये जो Unbounce करके, for example, I'll give you an example. Unbounce करके एक website है where you can create your landing pages, but then you need some technical knowledge, some basic knowledge to create these landing pages. Like you have to buy a domain, you have to buy their service, paid service. So I would suggest rather just approach a freelancer who can create a landing page for you. That would be better than you wasting your time behind doing it yourself. Okay. One attendee is asking, in Facebook, if we need to run ads, which one is better? Should I boost ads or go through the ads manager, which is effective? See, if you know how to use the ads manager, I think that is a better option. Okay, if you know how to create a lead generation or a website click campaign, then that would be a click to website campaign. That would be better using ads manager. But agar wo aapko complicated lag raha hai, if you're finding it difficult, you can use Boost Post also. Now Boost Post is not what it was like a year back. Now they've given you all the options from the front end itself, from the page itself. So if you know ads manager, use ads manager. If not, you can just go to the profile page and boost it and generate leads. Mr. Ramakant Tiwari is asking, what should be the ideal budget to get maximum leads on Facebook? It depends on what a product is. Abhi dekho, for example, if you take up Mahindra Happiness, and I would suggest a minimum of 15,000-20,000 is what you need to invest to get, say, around 50 odd leads, minimum 50 to 100 leads. Okay, so it depends. Aapka targeting kitna specific hai. If your targeting is right, then you can get good lot of leads with 10-15,000 budgets. Samir Shah is asking, how do I use WhatsApp catalog to display financial products or services? Catalog में अपने products तो आप डाल सकते हो catalog में. It's very simple. You just need to put a title, you need to put description about that, you need to upload a photograph. So catalog can be used to put up any product that you have and any service, as long as you have some media to showcase that. It's very simple. Samir, I think the better thing, we market mutual funds, insurance, general insurance, and mediclaim and real estate. So in सबके creatives already अपने branch list पे रहेंगे, आपको मिलेंगे. तो all you have to do is just pick up those creatives and add on this, और उसके साथ listing भी डाल. मतलब उसमें छोटा 1-2 चीज ही पूछता है, WhatsApp ज़्यादा पूछता नहीं है, खाली price पूछता है. You can do it. SIP डाल दो तो 1,000 rupees डाल दो, 5,000 rupees डाल दो. mediclaim में एक normal average size ले लो client का, 25-30 years client का, एक 5 लाख का insurance का कितना premium आता है वो उसमें डाल दो. I think that's very easy. I think you can display all the products, no issues in that. His one more question is, how do I increase the clicks to a YouTube channel that has financial services on the offering and investor education videos? Sir, उसके लिए simple answer है, हितेश को hire कर लो, वो कर लेगा.
नहीं. So I'll give you a small suggestion because we don't do that frankly. So I'll tell you what you can do is make sure you include keywords in your tagline. मतलब अगर आपका टॉपिक जो आप YouTube पे डाल रहे हो उसमें ना आप अपना कीवर्ड इंक्लूड करो. So for example financial services in Mumbai, अगर आपने ये साथ में डाल दिया अपने टाइटल के, तो मे बी वो कीवर्ड से कोई सर्च कर रहा है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका सर्च क्वेरी है दैट रियली मैटर्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर. वो जब सर्च कर रहा है तो वो क्या सर्च कर रहा है, और वो जो सर्च कर रहा है अगर वो आपके टाइटल में है तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो ज्यादा डिस्प्ले होने लगेगा और उसको ज्यादा क्लिक्स मिलने लगेंगे. सो इंश्योर दैट यू हैव कीवर्ड्स इन योर टाइटल इन यूट्यूब. दैट विल रियली हेल्प यू गेट मोर क्लिक्स एंड व्यूज. Mr. Narayan. And even your thumbnail really matters. So थोड़ा competition को. Sir, आवाज टूट रहा है मेरा? नहीं sir. Am I audible? Yeah. Yeah. So yeah, thumbnail is also very important. So have a look at what others are doing. जिनको 500k views मिले, 1 million views मिले, उनके thumbnail study करो. देखो किस तरह से वो लोग ने बड़ा text के साथ thumbnail डाला. So use that strategy to get more views and clicks. Mr. Narayan Rokde is asking how to shift my FB page to Business Manager. Is this process they are asking, not adding prepaid account? So can you repeat that? I didn't get you. How to shift my FB page to Business Manager? I don't think you need to shift it, right? It's just a Facebook page to Business Manager. So see, I'll just clarify. If you have your own profile page, it is very different from your business page. So first, create your business page. If you already have a business page, then you need to go on Facebook Ads Manager. हम आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, उसमें Ads Manager का लिंक है जिसमें आप साइन अप करके Ads Manager के लिए साइन अप कर सकते हो. And then from there, it will give you an option to link your page to Ads Manager. I think I got what he is asking. He's not asking that. पहले जो ना FB के पेजेस का एक ऐप आता था FB पेजेस करके. अब वो FB पेजेस नहीं आता है. Now the app has been renamed as Business Manager. Business Suite. Facebook Business Suite. Okay, तो वो Business Suite जो है वो FB पेजेस का ही नाम चेंज होके FB Business Suite बन गया है. So there is no process change. It is just normal. Okay. Rahul Kamble is asking, can we get this recording? Yes, sir. It will be uploaded on YouTube. By Monday, it will be uploaded, Hitesh? Yes, sir. Monday, EOD will be done. We'll share it with everyone in the email that we are going to share with them. So, sir, we'll just mention them that what all we are sharing with them. एक document share होगा जिसमें सारे links होंगे sign up के and tutorials के and YouTube videos के, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या exactly हमने बोला और उसका कैसे आपको execute करना है. Number 2, एक YouTube का link डाल देंगे जहाँ पे आपको ये पूरा वेबिनार का रिकॉर्डिंग होगा. थर्ड, महिंद्रा हैप्पीनेस्ट के कोलैटरल्स होंगे जो यूज करके आप अपने एड सेटअप कर सकते हो. उसके अलावा टेक्स्ट होगा जो हमने आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे दिखाया जो आप यूज कर सकते हो वो पोस्ट करने के टाइम पे. सो ऑल दीज थिंग्स, एनीथिंग एल्स इफ यू नीड यू जस्ट लेट अस नो. प्रदीप शेट्टी का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई एम एडमिन ऑफ मुंबई रियल एस्टेट ग्रुप ऑन फेसबुक विद 45,000 members. Wow. Okay, how can I maximize leads? Sir, if you are the admin, then obviously you can put up your postings. See, lead generation क्या है? अगर आपने कुछ प्रोडक्ट अपने ग्रुप पे डाल दिया and people are interested in that, then they will reach out to you. ठीक है? So you have to put up good quality images and you have to be consistent in putting up products and services from your end. अगर आप ये ग्रुप के एडमिन हो, so I'm sure आपको कोई बैन नहीं करने वाला है. So you can obviously put up one post a day about your products and services and you will get leads out of that. I'm sure if you're talking about real estate, तो आप real estate के projects और offerings और discounts और जो भी existing offer आपको आ रहे हैं, you can put that up on your group and get leads from that. And ensure you always have a CTA, मतलब call. Sir, I have seen a lot of people putting up postings, but उधर वो लोग डालते नहीं हैं कि क्या करना है next. कि visit my website or call now on this number or WhatsApp me on this number. So that is very important along with any of your posting. Tell people what to do if they're interested in your post. So that way you will be able to generate good leads. Yeah. How can we link our project microsite with Facebook? Mr. Ramakant Tiwari is asking. सर उधर जब मैंने आपको डेमो दिखाया था, आई होप यू वर देयर. सो एक ऑप्शन है विजिट वेबसाइट का, वेबसाइट क्लिक्स का. when you set up a campaign, वहाँ पे वेबसाइट क्लिक्स का एक ऑप्शन है. when you click on that objective, आपको वहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक पूछेगा. So when you set up this Mahindra, for example, we were setting up this Mahindra ad and instead of WhatsApp
selecting WhatsApp message on WhatsApp, we could have selected website clicks, then I could have put your website link there, and वहां से कोई भी click करेगा book now, learn more CTA से, तो it will directly redirect them to your website. So instead of using WhatsApp as a CTA, आप learn more, book now करके आप अपना website link उसमें डाल सकते हैं. Rutuja Davies, how many ad campaigns would you suggest for FB ads? It all depends on a target audience. So ad sets में क्या है ना, देखो, if you have multiple target audiences, then you can divide them into 3-4 at least. ठीक है, that will help you optimize your campaign. So you can have one geography, you can have geography wise division, you can have your interest wise division. So ideally we can suggest, you know, अगर आप South Mumbai और सेंट्रल मुंबई और थाने बियॉन्ड को 3 एड सेट में ब्रेकअप कर दोगे तो आपको एक ज्योग्राफिक एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको कहां से बेटर लीड्स आ रही है. सो वी सजेस्ट बेसिस योर ऑब्जेक्टिव यू कैन सेट अप एड सेट्स, बट यू शुडंट हैव अ लॉट ऑफ देम बिकॉज एनालिसिस उतना डिफिकल्ट हो जाता है. यू कैन हैव 3 to 4 एड सेट्स बेसिस ज्योग्राफी. दैट इज व्हाट वी सजेस्ट. Last question is from Mitesh Ved. How can we see or how can we connect the person who had seen the page ads? So also the only way to connect, there are 2 ways. Either he fills up your form, अगर आपने ad setup किया और they reached out to you तो आपसे connect हो गया. Secondly, अगर उसने like किया ना तो you can go in likes, you can click on that likes, you can see who all are the people who've liked and invite them to like your page. ठीक है, any one of you, if you are putting up business postings और आप पे कर रहे हो या आपको likes आता है तो आप वो likes में जाके देखो किसने like किया है. तो वो like के बाजू में ना एक invite का बटन आपको दिखेगा, तो उस पे क्लिक करके आप उनको invite कीजिए. That is the best way of connecting with them. Yeah. Yes. Any other question? I think that was the last and final question. Yes. I think we are done. The questioners. Thank you. It was a very long and very, very educative session. Lot of partners have sent messages saying thanks for this. Sir, your voice is cracking. I think there's some issue with the network. A lot of partners have sent thanks and thanks for this extensive learning session. Okay, really, Hitesh, it was a fantastic session. Really, really thank you for all that. And I would really thank team Mahindra also, Sanjay, Ame. Really thank you for your time and thank you for the creatives and the insight of the project. And special thanks to Madhya and Hitesh. It was a lovely, lovely session. Thank you, sir. And continuously sub partners ka thank you aa raha hai. Okay, thank you. I think we will close the session now. Yeah. Thank you, Kapil ji, and thank you, Hitesh, for a wonderful session. I think it was very effective session to understand how to do the digital marketing with the minimum cost effectiveness. I think it was a wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Thank Thanks. you, Ji. Thank you, everyone. Thank you, Kapil sir. Thank you, Hitesh. Thank you all. Thank you, Amir. Thank you very much. Thank you for your patience. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye.